A very good evening, everyone. How are all of y'all doing? Let me know in the chat section. This is Vardhan and welcome back to day number 10 of the 100x Wealth Secret Bootcamp. So are you all excited for day number 10? Just let me know in the chat section. And let me repeat the rules once again. सबसे पहला, everyone must be turning on your cameras, ठीक है? Everyone be on your camera. Let me see your faces right here. Kindly everyone come upon your camera. Yes, Madhav sir, Basant sir, Pavitra, Sakshi, Mubarak, Manish, Arav, everyone kindly come upon the camera, because we should not, see it as we are putting up a show here. ठीक है? It is a conversation, so it must happen like a conversation. उसके लिए आपका कैमरा ऑन होना चाहिए so that we can interact properly. And second thing, आप chats में active होने चाहिए. ठीक है? Be highly active in the chat section. Why? Because your ears, shall I repeat it? आपके कान बेईमान होते हैं and it does not retain any information that you learn. Okay, so you must engage while you learn. Okay, everyone, you must engage while you learn so that your subconscious mind knows that you are learning something. Otherwise, you know what? उसे ये तक पता नहीं चलता है कि आपने कुछ सीखा है. तो if to tell your subconscious mind, to tell your mind that yes, I'm learning something, you must be highly active in the chat section. You must be engaging, you must be in activity, all right, so that things goes into your head. And after this session also, you'll be recording yourself and sending the tasks to us. Okay, so this whole process must be followed if you want the, whatever result, the desired outcome, if I say. Okay, so all right, so day number 10 and the topic for today is lead generation. सबसे पहले before we even start, just let me know कि आप सब में से कौन-कौन lead generation के बारे में जानते हैं already और कौन-कौन नहीं जानते हैं. ठीक है? अच्छा हाँ, a lot of new people also I am seeing here. तो सबसे पहले जो भी नए लोग हैं वो FT type कर दे so that I can know, and also type your location and occupation. ठीक है? Then we'll move on. जितने भी लोग पहली बार हैं, kindly type FT first time. You're for the first time here? Let me see. Only 3 people, Krishna, Shraddha, Mubarak. खाली आप 3 जन का कैमरा ऑन है, बाकी सब कहाँ हैं? Where are all of other people? Rajshri there, okay. Vasant, great. Madhav sir, okay. Yes, everyone, kindly turn on your cameras. Thank you. Okay, so Sivaji for the first time, Basant for the first time. Great to have you all here. And let me tell you one more thing, that voice clear hai to, right? Let me tell you one more thing, that you know what, हम सब अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं ना कि we don't stop and look at ourselves कि is our foundation strong or not, और हम लोग जहाँ बढ़ रहे, is it the right direction or not. And right now आप अपनी busy life में से you may have done so many things. मतलब इस session के अलावा भी you may be having a lot of other stuffs, but still you are attending this session. This means that you are ready to actually take a pause and see कि where am I heading towards. Okay, and it is very important to recheck yourself and recheck your direction. Is it the authentic direction that I want to move on or not? ठीक है? So वो authentic direction हमेशा आपको रीचेक करना पड़ेगा, हमेशा आपका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. ठीक है? बिकॉज ये जो लाइफ व्हीकल जो है ना, लाइफ वाली व्हीकल, इस व्हीकल का everything is under your control and you must know how to drive it. कब ब्रेक यूज करना है, कब एक्सीलरेटर यूज करना है, कब क्लच यूज करना है. ठीक है? ऑल ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी क्लियर. तो अभी आप पॉज ले रहे हो, ठीक है, एंड यू आर रीचेकिंग योरसेल्फ, और रूट्स में आप दोबारा काम कर रहे हो. ठीक है? सो यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ फॉर दिस. How many of you agree with me? You must be appreciating and celebrating this moment, right? So I would just like कि आप सब अपने लिए clap करें, because you are taking this step.
बाकी सब तो इतने बिजी है, दे आर टू बिजी टू अडेप्ट, दे आर टू बिजी टू मेक चेंजेस. Yes, agree or disagree? A lot of people, I hope that you are not from those people. ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही आ गए यहाँ बैठ गए. You are actually genuinely there to make changes, right? Otherwise, people are too busy to make changes. And if you are too busy to make changes, if you are too busy to adapt, then other, people, other things will, like आपको कुचल के वो आगे निकल जाएंगे, and you will be radically uprooted from the marketplace. No other things, no other option for you, I can say. True? Agree? Yes. So like this, just, stay active and we'll be moving ahead. तो सबसे पहले अब आप मुझे बताएं कि आप लीड जनरेशन के बारे में कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं या नहीं जानते, just let me know. यहाँ पर मिस मीर मोहम्मद सर ने लिखा है डोंट नो, ठीक है. और बाकी सब काइंडली लेट मी नो कौन कौन इसके बारे में जानते हैं. टाइप मी इन द चैट सेक्शन, दे नो अबाउट लीड जनरेशन. अगर नहीं जानते हैं तो टाइप डोंट नो. लेट मी जस्ट सी. नो आइडिया, नो आइडिया. श्रद्धा मैम जानती है मी, ओके. नो आइडिया, ओके. Yes. Everyone, kindly participate. Let me know. Do you know about lead generation or not? So I will be knowing my audience, right? Madhav Mitra, don't know. Shivaji, I don't know. Basant, I don't know. No idea. Mubarak Ansari, Krishna Jaina, don't know. Okay, so Shraddha ma'am knows about it. Rest all the people are unaware of lead generation. Shall I, क्या मैं ये मानूं या फिर आप लिखने वाले हो? Yes, I know. जितने भी लोग बाकी हैं, still I am seeing not enough people are active. Kindly turn on your camera. Let me see your faces. Are you all sleeping? Inactive people? Okay. So, lead generation. All right. So, day number 10, lead generation strategies. हम लोग strategies के बारे में बात करेंगे, पर strategies से पहले हम ये जान लेते हैं कि basically लीड जनरेशन होता क्या है. सी वी ऑल नो कि डेटा ड्रिवन मार्केट है, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है और डेटा ही लीड है. ठीक है, आपके एक्सेल शीट में जितने नंबर हैं दे आर योर लीड. जितने भी ईमेल आईडी हैं, जैसे अगर ऑफलाइन में देखें तो स्कूल होता है, जिम होता है, उसमें एक रजिस्टर होता है ना. रजिस्टर में लोगों का नाम, पता, नंबर रहता है ना, राइट. तो बस वही है आपका लीड. ठीक है, मतलब कितने लोगों का डेटा आपके पास है. डेटास आर द लीड्स. ऑलराइट. व्हाई? बिकॉज सी जितने ज्यादा लोगों का डेटा आपके पास रहेगा ना, उतने ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हो, उतने ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो. क्यों? क्योंकि यू विल बी हैविंग पीपल हु आर हु यू हैव टू रीच टू. ठीक है, ऑलराइट. जिन तक आप पहुंच सकते हैं अपने ऑफर्स, अपनी सर्विसेज को लेकर के. ठीक है, डेटा. But at the same time, you need to also understand कि datas are not just numbers or letters on your Excel sheet. They are people, they are human. ठीक है, तो lead generation एक पार्ट है और lead nurturing दूसरा पार्ट है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि लीड जनरेट कर दिए वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम में उनको नर्चर भी कर देंगे. It doesn't happen like that. हमारे यहाँ जब आप आते हो तो what happens? Do you feel like an like imposter या फिर like बस भीड़ में आपको ट्रीट कर दिया जा रहा है? Does it happen like that with you after you come into shubhvardhan.com? The nurturing happens very segment wise. एक आपको हर एक इंसान को कॉल जाता है, हर एक इंसान से पर्सनल इंटरेक्शन होता है, राइट. दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लीड जनरेट तो कर लिया, बट लीड नर्चरिंग जब तक नहीं होगी तब तक लीड कन्वर्जन तो होगा नहीं. तो लीड नर्चरिंग इज अ पार्ट जब आपको समझना होगा कि पीपल कनेक्ट विद पीपल. ठीक है, एंड सो लीड जनरेशन में यू आई विल गिव यू द बेसिक्स. और जितने भी लोग LMS के पार्ट हैं, they would be learning the technical stuff. Otherwise मैं बस आपको आज जो बताऊंगी वो ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा, because I know कि यहाँ सब बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो we'll start from the basics. ठीक है, let me share with you the mind map. Okay, day number 10.
लेट मी जस्ट शेयर विथ यू कि हमने स्टार्टिंग कैसे की थी. डे नंबर 1 वाज फाउंडेशन सेटिंग, 2 वाज 100x सीक्रेट, देन एक्सपर्ट पोजिशनिंग डे नंबर 3, 4 वाज टारगेट ऑडियंस रिसर्च, funnel building day 5, day 6 was content research, day 7 is production and offer, day 8 was influence building, day 9 हमने बात की थी ट्रैफिक स्ट्रैटेजी के बारे. अब ट्रैफिक आ गया, अब हम लोग लीड जनरेशन करेंगे. ठीक है. So under lead gen strategy, I'll share 6 steps with you all. All right. So are you all ready? Shall we start? Just type ready in the chat section. Durgesh Soni, I think you are a new member. 21 people right here, but still not everyone is active. Kindly be highly active, everyone. देखिए एकदम सिंपल सा बात समझिए, लीड जनरेशन तक तो आप पहुंच गए हैं, लेकिन आप में से कितने लोग लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं? जरा हैंड रेज करेंगे. You can raise your hands. हम लोग भी लगभग आप लोग के साथ ना घसीटा राम ही हो जा रहे हैं धीरे धीरे. करते आप लोग कुछ है नहीं, हम लोग सिलेबस आगे भगा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है. 2 people raised hand, Mir and Krishna Kumar Yadav. 3 people raised hand, Firdaus Ali Khan. So you feel कि lead generation की requirement है? सर ऐसा है ना कि फिरदौस साहब जब बोलते हैं बात तो बेमान सा लगता है. और कौन है? मीर मोहम्मद, कृष्ण कुमार यादव, विपिन महेश्वरी. मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो मेरा एक स्ट्रक्चर और मेरा काम करने का तरीका है ना, वो तरीका मैं आपको लीड जनरेशन में सिखा दूंगा तो आप एक बहुत बड़ा सा, पहले से हॉल थे और फिर दूसरा भी एक बहुत बड़ा सा हॉल हो जाओगे. क्योंकि ये जो कान में सुनते हैं ना वो, और जो प्रैक्टिकल होता है वो, उसमें आसमान और जमीन का फर्क है. ठीक है. तो लीड जनरेशन आपको पता चल गया कि कुछ होता है, उससे धंधा निकालते हैं, और उसके पीछे का जितना शॉर्ट हो बात है उसका कोई मतलब ही नहीं है. आप लोग से होता ही नहीं है, आप लोग का सांस फूलने लगता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो बोला गया करने का. तो बेमान है ये सब बात. ठीक है. आप लोग गलत ट्रैक पे जाके कुछ और पकड़ लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है. टोटल एक सिस्टम होता है जो काम करता है. ठीक है ना. हर जगह फनल है जहां पर हम लोग एक बात बोलते हैं जिसका नाम है सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल. ठीक है ना. तो ये सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल तक आने में कम से कम 1000 लोग आपके मुरीद हो चुके होते हैं, 1000 लोग कम से कम आपके सपोर्टर, फैन और आपके अनुयायी हो चुके होते हैं. तब जाकर के ये बात अपने आप में ऊपर चलती है, जहां पर लोग आपको सलाम ठोकते हैं और आपके फैन, सपोर्टर, मुरीद. और वो 1000 लोग का जो गर्मी होता है ना, वो बाकी लोगों को अपने आप मतलब धक्का मार के आगे भेज देता है. किसी ने लोकल ट्रेन पे चढ़ा होगा ना, कोई मुंबई गया है, धक्का मार कंपनी में कुछ करना नहीं पड़ता है. खड़े रहो, लोग अपने घुसा देंगे, और खड़े रहो, अपने लोग उतार भी देंगे. किसको किसको बात समझ में आ रही है? तो ये सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल मैं बोला, आप सुन लिए. पहले 2500 मेंटर ने बोला, आप भी सुन लिए. लेकिन प्रैक्टिकली जब जमीन पे उतरिएगा तो पता चलेगा. बिल्ड द कम्युनिटी, सारे लोग टाइप करेंगे, बिल्ड द कम्युनिटी, नर्चर द कम्युनिटी. ठीक है ना. क्या बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी होता है. उसके बाद सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल खुद ब खुद हो जाता है. किसको किसको बात यहां तक समझ में आ गया? बिल्डिंग एंड नर्चरिंग. जो यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट या नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, आप किसको एक बार में जाके पैसा लेके आए थे, जरा बताइएगा. धीरज, आप कितने क्लाइंट के पास गए हैं और वो बैठा था आपके लिए मोटरी में पैसा लेके, और आपने फॉर्म साइन करवाया और पैसा लेके चल दिया? मैं तो अपनी लाइफ में ऐसा बहुत किया हूं, आप लोग ने नहीं किया होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं. मैं तो अभी पिछले मार्च में भी इस धंधे में पिछले मार्च में भी रात के 2 बजे 3 बजे पेमेंट लिया हूं. ये जो मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं उसमें भी मैं मार्च 31 तारीख के दिन रात के 2 बजे तक पेमेंट लिया हूं, 2:30 बजे तक पेमेंट लिया हूं. ठीक है ना. कि भाई मार्च का क्लोजिंग है, क्या बोलते हैं, आपको आना है तो अंदर आइए, पेमेंट करिए. और रात के 2:30 बजे तक लोग पेमेंट किया है मेरे को. ठीक है ना. तो अपना अपना गट फीलिंग होता है. आप में कितना गट है कि अपना मंथ क्लोजिंग या ईयरली क्लोजिंग को आप रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे भी डील करते हैं. जाके दरवाजा नॉक किए होंगे और आपने पेमेंट लिया होगा. कौन कौन यहाँ पर ऐसे धुरंधर है? मीर साहब, कृष्णा साहब, फिरोज साहब,
धीरज साहब, आपने कौन सा इंश्योरेंस का क्लोजिंग किया है जिसमें रात के 3 बजे जाके आपने डोर नॉक किया है, फॉर्म में साइन करा के पैसा लिया है? कोई है वैसा दिग्गज यहाँ पे? कोई नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज हैं यहाँ पे जिन्होंने रात के 3 बजे दरवाजा नॉक किया, 5 बार फोन किया नहीं उठाया, 6 बार फोन किया नहीं उठाया तो जाके घर दरवाजा नॉक किया, अरे यार मैं आया हूं, नहीं समझ में आ रहा है, खोल दरवाजा खोल, और घुस गया घर में, बैठा, फॉर्म साइन कराया, पैसा लिया और फिर उठ के गया? कोई है यहाँ पे? मैं हूं ऐसा धुरंधर। ऐसा मैंने लगातार कई एक साल किया है, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे एजेंट को भी परेशान किया है और एजेंट के कस्टमर को भी परेशान किया है। परेशान क्या किया है? पैसा लिया है बकायदा फॉर्म भरा करके। बस धंधा गट से होता है, ठीक है ना, गट से होता है धंधा, फार्मूला से नहीं होता है। हर फार्मूला फेल है, आपके पास जितना स्ट्रेटजी है ना सब जीरो हो जाएगा, और मैं हर स्ट्रेटजी के ऊपर बैठ जाऊंगा और वहां से एक मोटा सा अमाउंट उठा के निकाल के ले आऊंगा। तो ये मैं बोलने का मतलब है कि मैं यहाँ बैठा हूं, अब आपको वो बोलते हैं ना कि असली लीडर वो है ना जो लीडर पैदा करे, ठीक है ना, एक लीडर वो है ना जो लीडर पैदा करता है। मैंने तो पैदा कर दिया, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, माथा से भी मेरे बच्चों में वो काबिलियत है कि वो अच्छे अच्छे टीसीएस, इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के लोगों को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के पहुंचा देंगे कहीं और। पता है ना 2-4 दिन पहले का कहानी किसको किसको पता है? गूगल ने 12,000 लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया। किसको किसको ये न्यूज पता है? सामने है स्क्रीन, सबको एक साथ लाई हुई है ना? बताइए जरा स्क्रीन पे आके, किसको किसको पता है कि गूगल ने 12,000 इंप्लॉय को फेंक दिया उठा के बाहर? उसमें से एक महिला वैसी भी थी जो मैटरनिटी लीव में भी थी। किसको किसको ये बात पता है? 12,000 लोग गए, जॉबलेस हो गए एक बार में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, 1 महीने का पेमेंट करेगा एक्स्ट्रा और भगा दिया। बात समझ में आ रही है? अभी लोगों की ऐसी की तैसी, कोई लोग किसी काम का नहीं है, अपने आप को आप तोप समझिए, झाड़ समझिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जो सिखा रहा हूं, जो बोल रहा हूं, उसको अक्षर सा मानना होगा, एकदम छोटे बच्चे की भांति मानना होगा। इस बात के लिए डरना होगा कि सर बोले हैं या भैया बोले या पापा बोले, वो बात को समझना होगा कि इस तरह से करना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास। 4 दिन पहले 12,000 लोगों को गूगल कंपनी ने गधा के सर के सींग की तरह उठा के फेंक दिया। इसी तरह से हर विभाग से लोग को निकाल के फेंक दिया जाएगा। सारे लोग फ्रीलांसर की तरह काम करेंगे, जोमेटो का झोला ढोने वाला कंपनी वाला जैसे काम होता है ना, वैसे ही काम करेंगे। एक फिल्म भी आ गया, कपिल शर्मा का एक फिल्म आ गया है, जोमेटो का नाम थोड़ा बदल करके कुछ और जिगाटो कर दिया है, और उसके ऊपर फिल्म भी आ गया। अब इसी तरह की फिल्म भी बनेंगे, झोला ढो संस्था, खाना पहुंचाओ संस्था। अभी अभी फिल्म भी ऐसा ही बनेगा, प्रोग्राम भी ऐसे बनेगा, सब कुछ ऐसा ही बनेगा। इसीलिए जल्दी जल्दी जो बोल रहा हूं करिए, आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। यहाँ समझाइए फटाफट जो मैं बोला हूँ, कौन कौन क्या क्या टाइप किया देखिए जरा। I know sir, Firdaus Ali Khan. I don't know everyone. मैं अभी 2 मिनट में आपसे बात करता हूं। मुझे आप लोगों से इस 31 तारीख में 100 आदमी चाहिए क्लोजिंग में। मैं आप लोग सबको ये लीड जनरेशन और बिजनेस खड़ा करने का आज फार्मूला दूंगा, ठीक है ना? 2 मिनट थोड़ा बात कर लेता हूँ, अर्जेंट कॉल है, और उसके बाद ठीक है ना, तब तक वरदान आपको जो बता रही है सीखिए, ठीक है ना? 2-5 मिनट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और 31 तारीख के दिन मुझे हर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल से 100 लोग चाहिए अंदर। आपका कम्युनिटी बनेगा नहीं, आप उसको नर्चर करेंगे नहीं, आपके पास पैसे आएंगे नहीं, आपकी बड़ी बड़ी बातें पॉकेट में रखे रहिए। कुछ नहीं होता दुनिया में, बकवास से, बातों से, बतौला से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली आपने क्या किया ना वो हाथ में दिखेगा, तब आपका अंदर से मनोबल भी बढ़ेगा और आप नेक्स्ट लेवल पे कुछ शिफ्ट भी करोगे। किसको किसको बात कनेक्टेड है? कैपिटल लेटर में टाइप करे कनेक्टेड। Yes. The biggest thing is people want simple solution to their problem. So if you want to connect with them, you just have to give them what solution you have. Like, what's in it for me? They will ask, then you will be, like given कि like this is for you. ठीक है? मतलब context. मतलब आपके पास क्या है, क्या कंटेंट है आपके पास, ये उनसे मतलब उस चीज से उनको कोई मतलब नहीं है।
लीड जनरेशन में ना दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आनी है, क्योंकि आप जब अगर एड से लीड जनरेट कर रहे हो या फिर नॉर्मल लाइक फ्री आपने आप लिंक शेयर कर दिया और आप लीड जनरेट कर रहे हो, सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि बहुत सारी बातें नहीं करनी पड़ती है, बस एक ही छोटा सा लाइन होता है, एक ही छोटा सा लाइक एक वाइब होता है, या फिर एक लाइन जो उनको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली कि दिस इज द सोल्यूशन फॉर माय प्रॉब्लम। बस वो एक छोटा सा लाइन आपको ढूंढना है दैट लाइक कनेक्ट्स विद द टारगेट मार्केट, जो स्मॉल मिनिमम वाइएबल मार्केट वो कनेक्ट हो जाए, और वो उस चीज को मिस नहीं करना चाहते, इसलिए वो आपका अपना ईमेल आपको दे, अपना नंबर आपको दे, और आपसे वो जो भी आप फ्रीबी गिफ्ट या जिसके भी बदले लीड जनरेट कर रहे हैं वो आप उन्हें दे दे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, सिंपल सोल्यूशन, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, कंटेंट का कोई रोल नहीं है। ओके, व्हाट्स इन इट फॉर देम, क्या बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है, देखिए आप जब वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपको मेरा प्लेटफॉर्म मिलता है। मेरा प्लेटफॉर्म का मतलब है कि लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, डेली मोटा मोटी 2 से 2,500 लीड हम पैदा करते हैं। हमारे फेसबुक पे और गूगल पे ऐड चलते हैं, और नॉट ओनली फेसबुक और गूगल पे, मेरे व्हाट्सएप पे भी ऐड चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप का मतलब मेरे पास व्हाट्सएप का, मैंने आज से 2-3-4 क्लास पहले समझाया था आप लोगों को कि मेरा मेटा के साथ टाई अप हुआ है, तो मेटा का ही व्हाट्सएप ही है, व्हाट्सएप को मेटा ने खरीद लिया है। तो अभी उसके अंदर में इंटरनल बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लोग को नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करने वालों को नहीं पता है। किसको किसको मैं बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कि आप लोग जो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आप लोग को नहीं पता है। उसी तरह से फेसबुक के अंदर में बहुत सारे और फीचर है जो आपको नहीं पता है, यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे और फीचर है जो आपको नहीं पता है, वो एक प्रोफेशनल को पता होता है जो उसके दुनिया में होता है। तो आप लोग को जल्दी जल्दी प्रोफेशनल बनना होगा। और आप जो सोच रहे हो ना कि पैसे नहीं है, पैसे आएंगे, ये सारी बकवास बातें हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो भी आज बड़ा इंसान है ना, उसके पास पहले दिन पैसे नहीं थे। तो आप पैसों की बात मत करें, वो घर में जो सोना रखे ना गहना, उसको बेच डाले या जमीन प्रॉपर्टी को बेच दे, क्योंकि वो फिर से आप बना लेंगे, अगर नहीं तो बेच के खाना पड़ेगा। जो अवस्था है मार्केट का और 2024 के बाद जो अवस्था आएगी ना, उसमें गारंटी है कि अगर आपने आज अपने ऊपर समय नहीं लगाया, बहुत मोटा मोटा और बहुत गहरा और बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूं, अगर आपने आज अपने ऊपर समय नहीं निवेश किया, तो आने वाले टाइम पे जो आपने निवेश करके खड़ा किया ना, वो ईंटा बिक जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वहां की पढ़ाई से वो 5 पैसा घर में नहीं ला सकते हैं। ये बात को मोटा मोटा लिख के रखिए। अवस्था बहुत जबरदस्त ड्रास्टिकली चेंज है। कुली कवाड़ीगिरी के अलावा, मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं बचेगा बाजार में, झोला ढोने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा, हेल्फरी करने के अलावा कोई काम नहीं बचेगा, कमीशन एजेंट फ्रीलांसरिंग करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करके दोगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। और ऊपर से अगर समय बर्बाद किया किसी का, पैसा लेने के नहीं भी मिला, गाली भी मिलेगा साथ में, क्योंकि तुमने बोला था काम करेंगे उसके बाद पैसा लेंगे, उसके बाद अगर काम सही नहीं किया, सामने वाले का भरोसा तोड़ दिया वक्त, तो उसमें वो गाली भी मिलेगा। ऊपर से जिसके पास गूगल पे रेटिंग नहीं होगा उसको काम भी नहीं मिलेगा। फिर से एक बात समझिए, जिसके पास गूगल में रेटिंग नहीं होगा उसको काम भी नहीं मिलेगा। आप कितने बड़े एमबीबीएस है ना, वो सर्टिफिकेट को घर में रखिए, आपके पास पेशेंट आएगा ही उस वक्त ना जब आपके पास आपके गूगल पे रेटिंग देखेगा। किसको किसको बात फिर से कनेक्ट हो गया कि एक एमबीबीएस जो डॉक्टर प्रैक्टिस किया है, वो प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास भी पेशेंट उस वक्त आएगा जब उसका गूगल पे रेटिंग और रिव्यू पढ़ लेगा। इसीलिए ज्यादा काबिल बनेंगे तो बकरीती करके रह जाएंगे, भजर भजर जो करते हैं ना आप लोग, भजर भजर करके रहेंगे, काम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी जो ओरिजिनल कंडीशन है उसको मैं आपको आभास दिला रहा हूं, उसको समझिए और उसके अधीन होकर के उसको मान के करिए। आपके आज के खा देने से जीवन नहीं खत्म होने वाला, जीवन कल खत्म नहीं हो जाएगा, आप कल मरने वाले नहीं है। अभी है 20-25-40 साल में खड़े हैं, तो 20-25-30 साल अभी है जीवन। तो जैसे बदलाव है ना, उस बदलाव को तुरंत एडमिट करें। आप नहीं एडमिट करेंगे, 1000 लाख 1000 पैर आपको कुचल के आगे निकल रहा है उसी पल जिस पल आप सोच रहे हैं कि थोड़ा नवीन ज्यादा ही बोलता है। जिस पल आप सोच रहे हैं ना कि नवीन थोड़ा ज्यादा ही बोलता है, उसी पल आपको 1000 लाख कुचल के निकल जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा, वो तकलीफ होगा उस वक्त जब आपको समझ में आएगा, तब बर्दाश्त से बाहर वाला दर्द होगा। इसीलिए ये माथा को खोलिए। आप किस सेक्टर में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी भी सेक्टर में आप हैं, आपके ऊपर में बहुत बड़ा पहाड़ गिर रहा है,
आपको नजर अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा नरेंद्र मोदी जी 24 तक का इंतजार कर रहे हैं, वो सब समझ में आएगा। इसीलिए जो बताया जा रहा है उसको एकदम करिए। एक ही बात मैं बोल रहा हूं, खुद पे समय निवेश कीजिए, मार्केट को पैसे दीजिए, सामान बेच के पैसा, लोटा घर का चम्मच बेच के पैसा दीजिए बाजार को, लेकिन अपने आप को समय दीजिए। अगर अपने आप को समय नहीं देंगे और अपने आप को पैसा दिलाने के लिए बाजार में जाके समय देंगे, यानी खून के आंसू रोएंगे। और जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा पढ़ रहा है ना, वहां से वो 5 पैसे का आदमी नहीं बनेगा। एकदम मोटा मोटा बात को लिख के रखिए। आज आप 2 लाख रुपए एक दिन में कमाते हैं ना, आप डिग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपने अपना सुबह से शाम तक में 2 बार ईमेल इनबॉक्स चेक नहीं किया, आप 10 रुपया भी नहीं कमाते हैं, लेकिन आपके पास रीजन है कि आप 2 बार ईमेल इनबॉक्स चेक करेंगे तो आप ग्रो कर रहे हैं। जो भाषा है, जो व्यवस्था, उसको पकड़िए, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन, आखिर इसको कैसे आप करिएगा, कैसे इसको हाथ में लेके इसका इस्तेमाल कैसे करिएगा? कोई समझा सकता है क्या करिएगा ऐसा कि लीड जनरेट करेंगे और उसको? क्योंकि लीड जनरेशन नहीं है। लीड का मतलब है आज के डेट में कि जो लोग आ गए उनको एक समुदाय में एक पर्पस है, उस पर्पस को आपको सामने लाना पड़ेगा, जिसको मैं बोला सुई का नोक। उस सुई के नोक में आपको सामने लाना पड़ेगा और उसके बाद उसको नर्चर करना पड़ेगा, मतलब कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा और कम्युनिटी को नर्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कम्युनिटी बिल्ड होगी, फिर कम्युनिटी नर्चर होगी, तो उतना बात, उतना फिलॉसफी, उतना ज्ञान, उतना उसके जरूरत का चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तब जाके मैं यहां डेली 2000-2500 लीड जनरेट करता हूं, यहां तो लोग सट नहीं रहे, जबकि मैं इतना काइंड हूं, इतनी विस्तारवादी बातें करता हूं, हर बिंदु पे नजर ले जा रहा हूं, तब तो मेरे पास लोग नहीं आ रहे। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मेरे सारे पैसे जाने के बाद भी, लेकिन हाँ कैसे होगा, उसका एक प्रोपोर्शनेट है। कॉल टू एक्शन का एक सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में जाके एक आदमी अंदर आता है। ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें हैं जिसको आप जब तक समझेंगे नहीं, तब तक सेल विदाउट सेल और सेल विदाउट टेल को समझ नहीं पाएंगे। लीड जनरेट करके करेंगे क्या? अभी मैं आपको बताता हूं लीड कैसे जनरेट होता है, 1 सेकेंड में बताऊंगा और आप राजा बन जाएंगे। लीड चाहिए तो कितना लीड चाहिए? 1000, 5000, 25,000, 1 लाख, 5 लाख। अभी आधा घंटा में 5 लाख लीड आपको मिल जाएगा। किसको किसको लीड चाहिए बताइए? आपको किसको किसको लीड चाहिए, यानी आदमी का नाम और नंबर। 5 लाख लीड अभी आधा घंटा में आपको मिल जाएगा। मैं अभी तुरंत ट्रिक बताता हूं, लेकिन वो आपका टारगेट मार्केट थोड़ी ना है। जब आप अपनी बातें करेंगे 5 लाख लोगों के सामने, उसमें से कुछ लोग आपके सामने आएंगे। जब भी, कब आएंगे? जब आपकी बातों में एक लस्ट होगा और एक हुक होगा, हुक। तो वो कौन सा हुक सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा? क्या वो शुगर पेशेंट है? क्या वो उसके स्किन में प्रॉब्लम है? क्या उसका बाल झड़ रहा है? आपको कौन से एक बात पे बात करना होगा? आप एक नेटवर्क मार्केटर है, आप फॉरेक्स की बात करते हैं, आप बिटकॉइन की बात करते हैं, आप क्या ऐसा बात करते हैं? आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन देते हैं, आप वाटर प्यूरिफायर देते हैं, आप क्या देते हैं? आप एक्वागार्ड वाले हैं, आप LIC वाले हैं, आप क्या हैं? लोन देने वाले हैं, क्या हैं आप? आपको कौन सा एक ऐसा बात बोलना है, जौन सा बात बोलना, वो कौन से सेगमेंट में आप बोल रहे हैं? ठीक है ना? तो आप हर एक चीज का क्लासिफिकेशन है और वो क्लासिफिकेशन के मातहत ही आप काम कर सकते हैं और वो सीखना पड़ेगा। वो अभी आपका जो मोटा दिमाग है, जिस तरह से चीजों को आप देखते हैं, उस तरीके से वो बातें ना सुनी जा सकती है ना समझी जा सकती हैं। उसको समझने के लिए एक नेक्स्ट लेवल का एजुकेशन चाहिए, आपके पास एक आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, उसके ऊपर में वो बातें रखी जाती हैं। तो आप लोग, क्योंकि बोल रहा हूं मैं लगातार वीडियो क्रिएट करने, आप इस बात को पता नहीं क्या समझते हैं, आप अपनी बातों को बोलते ही नहीं कैमरा के सामने। कैमरा के सामने बोलने का अभ्यास आपको सबसे पहले करना होगा, क्योंकि ऑटोमेशन पे सारा काम होगा। ऑटोमेशन ही ड्राइव होने वाला, आने वाला 6 महीना साल भर के बाद सिर्फ ऑटोमेशन पे काम होगा। कुछ जो दिखेगा वो कोई आदमी होगा ही नहीं। तो जब बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी सिस्टम ही इस तरह से ड्राइव होगी, तो फिर आप तो बहुत, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं। अगर हम लोग ने अपने व्यवस्था को वैसा नहीं किया तो हम लोग को हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, मतलब दबा हुआ महसूस होगा, और आपका मनोबल जब गिर कर जाता है ना, तो उठने में बहुत समय लगता है। तो अगर आपके पास वो बात नहीं रहा, जो बात चेंजेस आ रहा है, तो फिर आपके लिए मजबूरी है, आपको थक हार के बैठना पड़ेगा और कोसना पड़ेगा, अपने घर में कलह लाने वाली बात है।
तो मेन चीज वही है कि आपको जो करना है वो अपडेट होना है तुरंत, वीडियोस के माध्यम से बात करना है। एक वीडियो बना दिया, तो वीडियो बनाते कैसे हैं, वीडियो के अंदर में एक क्लासिफाइड मैनर में प्री प्लान्ड, यानी एडवांस का जमाना है। एक लाइन सारे लोग लिख ले कैपिटल लेटर में, हर चीज एडवांस होगा। पैसा लेंगे भी एडवांस, देंगे भी एडवांस, बातें सोचेंगे भी एडवांस में, उसको प्लान करके स्टेब्लिश भी कर देंगे एडवांस में, सारा काम एडवांस में होगा। यानी सारा चीज प्री फ्रेम और ऑटोमेटेड होगा। किसको किसको बात कनेक्ट हुआ, वो एडवांस लिखने के बाद कनेक्टेड लिखे कि हर चीज प्री फ्रेम होगा, प्री फ्रेम एडवांस में होगा। पैसा लेना भी एडवांस, कोई उधारी बाकी नहीं। हर चीज आपके इंटरनेट, आपको वाउचर डालना पड़ेगा तब इंटरनेट चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले इस्तेमाल कर लीजिए इंटरनेट बाद में बिल दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर चीज, पानी, कपड़ा, हर चीज आपको जो चाहिए वो सब एडवांस में होगा, सब एडवांस में। अब एडवांस वाला जमाना, ये उधारी बाकी वाला झमेला ही खत्म। कोई उधारी बाकी का सिस्टम नहीं चलेगा मार्केट में, सब कुछ पहले से पेमेंट करना है। तो एडवांस का फार्मूला चलेगा, अभी सिर्फ एडवांस का फार्मूला चलेगा, कोई उधार बाकी का सिस्टम नहीं मार्केट में, कुछ नहीं। और लोग एडवांस में देके ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। जो आदमी आज आपको फ्री में घर पहुंचा के सामान दे रहा है और आपसे उसके बाद पैसा ले रहा है, या फिर अभी जो भी आदमी लोग सामान लेके आता है आपके पास और आप बोलते हैं कि घर में नहीं है, कल आना डिलीवरी देने के लिए, तो ये सारा बोलना भी पाप हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप कितना सामान बुक करते हैं, कितना सामान डिलीवरी लेते हैं, कितना सामान को आप वापस लौटा देते हैं। वो आपको पहचान रहा है। उसका एआई, जो आदमी आपके साथ जुड़ता है ना, वो आदमी सिस्टम लेके आता है, उसका ऐप लेके आता है, वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप 420 आदमी हैं या जेन्युइन आदमी हैं। अगले बार जब आप उसको कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको वो प्रोडक्ट का दाम ही नहीं बताएगा। जैसे आप उसको बुक करेंगे ना, कोई मान लो ऑफर दिख गया तो वो आपको वो माल दिखाएगा, बोलेगा आउट ऑफ स्टॉक है, आपका बुकिंग ही नहीं लेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे स्क्रीन सामने लेके आइए, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आपकी हरकतें इस तरह से काउंट हो रही हैं कि आपको अमेजोन पे एक सामान 10,000 का ऑफर में 6,000 का दिखाएगा, आप बुक करोगे, बुक हो जाएगा, आपसे पैसा ही नहीं रिसीव करेगा, बोलेगा आउट ऑफ स्टॉक है। वहां स्टॉक दिखाएगा, आपको बताएगा आउट ऑफ स्टॉक है, आप खरीद ही नहीं पाओगे। आप नौटंकी कितना करोगे, टेक्नोलॉजी के साथ सकोगे ही नहीं, आपकी सारी बलिहारी पॉकेट में रह जाएगी, आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। ये जो बोलते हैं ना सिविल गिर जाएगा, उतना दूर जाएगा ही नहीं गाड़ी, आपका सिविल तक बात पहुंचेगा ही नहीं। आपकी जोमेटो के साथ आपने 4 डिलीवरी अगर खराब कर दिया ना, तो वो रेटिंग चला जाएगा वहां पे। आप जोमेटो के साथ छोड़ दीजिए, स्विगी के साथ आ जाइए, ओला उबर के साथ आ जाइए, आपका कोई काम एक्सेप्ट ही नहीं होगा। आप कितना ईमेल आईडी बदलिएगा, कितना फोन नंबर बदलिएगा, वो उसके बाद भी आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि वो चार डीलिंग करेगा, 5वां डीलिंग में आपसे बोलेगा आधार अपडेट कीजिए। आप जितना काबिल हैं, सब काबिलियत रखा रह जाएगा। आप 2-4 डीलिंग अपना नंबर बदल के कीजिएगा, है ना, नाम बदल के कीजिएगा, फिर आपसे बोलेगा अपडेट कीजिए। अपडेट नहीं करिएगा आधार कार्ड, फिर वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आप सकेंगे ही नहीं। छोटा बुद्धि से पार खा जाइए, क्योंकि बड़ा गेमिफिकेशन ऑलरेडी बीत चुका है मार्केट में। आपका सियाना बनने से आप सियाना नहीं बन रहे, आप धूर और महाधूर बन जा रहे हैं। हर चीज ट्रैक हो रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटी आपको नहीं पता है, लेकिन पूरा चीज ट्रैक हो रहा है। इवन सैटेलाइट आपका चाल भी मूव, आपका जितना मूवमेंट है ना, वो आपके जाके थाना से पता लगाइए, अगर थाना में कोई परिचय है, आपको पूरी तरह आपका थाना वाला जानता है। अभी आप कहां पर है, आपका थाना वाला आपको जानता है, उठा के ले जाएगा वहां से। अगर आपने कुछ भी तरह का सस्पेक्ट है आप, तो आपको कहां से है ना, आपको कुछ पूछेगा नहीं, कुछ नहीं, उठा के ले जाएगा, सीधा गाड़ी आके खड़ा होगा, उठा के ले जाएगा कॉलर पे हाथ डाल के। मेन बात क्या है, एक एक चीज ट्रैकिंग में है, एक एक चीज सर्विलांस में है। जितना जल्दी इस हुनर को सीखिएगा, उतना जल्दी इसके साथ आप अवेयर होइएगा, अपने काम को ताकत दीजिएगा और आगे बढ़िएगा। पैसा पैसा मत करिए, नहीं तो खाते सोते रह जाइएगा। मोदी जी फ्री में अनाज देंगे, अभी तो खाली चावल गेहूं दे रहे हैं और कुछ कुछ दे रहे हैं ना, और बहुत सारा चीज फ्री में देंगे, क्योंकि माथा कोई नहीं लगाएगा, फोड़ेगा कोई अपना माथा नहीं, बोलेगा चल अपना घर का बच्चा है, खाना खिला इसको। 5 रुपए में खाना मिलता है तो हर जगह उसी तरह खाना बना के भी 5 रुपए में मिलेगा, और जिसको अनाज चाहिए उसको अनाज भी मिलेगा।
हमारा आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए, ये सबको पता है, वो उतना ही होगा। आपको खाना 5 रुपए में मिल जाएगा और आपको अनाज भी सस्ता में या फ्री में भी मिल जाएगा। इसीलिए तुरंत में स्मार्ट बनिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। किसको किसको बात यहां तक फिर से बल्ब ऑन हुआ है, सारे लोग टाइप करके बताएं। फिरदौस, मोहम्मद, यमुना, यस, श्रद्धा, कृष्णा, मुबारक, मनीष, बसंत, कृष्णा, मीर, ग्रेट। क्या चाहते हैं बोलिए, आप ही लोग बोलिए, जो चाहते हैं वही करेंगे। आज 10वां दिन है ना, जो हम लोग का इनर सर्कल है। तो यहाँ पे कौन लोग वैसे बैठे हैं जिनका 10वां है? जैसे मैं देख रहा हूँ मोहम्मद है, मनीष है, ठीक है। और श्रद्धा मैम ऑल्सो 10th डे। सदा मैम, आपका 10th क्लास का तो कोई मतलब नहीं बनता, आपका 10th हो गया, 10th वीक हो गया इनका। आई थिंक आप इसी बैच में ज्वाइन किए हैं ना शायद। आपका 10th वीक हो गया, 10th वीक हो गया? नहीं 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 हुआ, नहीं, नहीं हुआ ना, अच्छा। नहीं हुआ ना, तो मतलब ही नहीं है। अब मनीष भाई आप लाइए सामने, जरा बताइए जरा, आपके लिए किस काम का ये बात? आप ऑलरेडी इतने पुराने, 3-4 महीने पुराने, आप बताइए आपके लिए बात किस काम का है? क्या कर लीजिएगा आज का लेसन कंप्लीट करके आप? अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर किसी काम का नहीं है सर लीड जनरेशन मेरे लिए अभी तो। चलिए मैं केवल उसके बारे में जान सकता हूँ, लीड जनरेट करके भी अभी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने एलएमएस पे आपने कंप्लीट किया होता, अभी मैं पढ़ा रहा था, आप मुझसे 4 सवाल पूछते, क्योंकि क्यूएनए इनर सर्कल राउंड है आज, है ना। आपके पास कोई तैयारी नहीं है, क्या कर लेंगे आप? मुबारक अंसारी, आपने कितना एलएमएस पे किया है, जरा आइए सामने। धनबाद से मुबारक जी। मुबारक सर, वेयर आर यू? यस। आप बताइए ये बात आपके किस काम का है? अनम्यूट। यस मुबारक सर, आर यू देयर? ठीक है, एक्चुअली सुनाई दे रहा है यस। बोलिए मुबारक जी, सर। बोलिए। मैंने एलएमएस में ये किया है सर। आवाज पहले बात कीजिए, बाद में मोबाइल संभालिएगा, बोलिए। सर एलएमएस में मैंने 6 क्लासेस कंप्लीट किए। डे 6 तक। डे 6 का मतलब है आपने मोटा मोटी 12 से 15 घंटा एलएमएस में बिता लिया, आपका बोलने का मतलब है। क्या पूछ रहा हूं? हाँ, तो 12 से 15 घंटा में कितना आपने टॉपिक पे वीडियो बनाया? आपने क्या जाना? मुबारक सर। ये तो है। यस, आप वापस से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मुबारक जी, आप बताइए जो भी आपने लेसन कंज्यूम किया है उसके ऊपर आपने कितने टॉपिक पे बातें करी है? भैया आप स्वामी मैंने जो कंज्यूम विवेकानंद, किया हर हर पर 2-2 या 3-3 वीडियो। मेरे को सब पता है, आपने एक भी टॉपिक पे बात नहीं करी है। आपको लग रहा है ना कि आपने कोई चीज कंज्यूम कर लिया, स्वामी विवेकानंद हो गए, ऐसे किताब को देखा और आपके सब दिमाग में आ गया है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया आपने। ऐसे धोखाधड़ी वाला बात है। आप लोग अपने आप को धोखा देना इमीडिएट तत्काल प्रभाव से बंद कीजिए। बड़ा जतन लगेगा तब बातें आपके हाथ में लगेगी, हाथ में ताकत आएगी। बात समझ रहे हैं? बड़ा मेहनत लगेगा, एकदम अपने आप को संभाल के, ठीक है ना।
थोड़ा भी हल्के में मत लीजिए, ये बहुत डीप पढ़ाई है। आपको मैंने पहले कई क्लासेस में बताया, जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो सामर्थ्य लगता है ना, जो एक सर्जन बनने के लिए जो सामर्थ्य लगता है ना, वो सामर्थ्य लगेगा यहाँ पे। मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया और बताया है कि 24 घंटा में 48 घंटे का सामर्थ्य लगेगा यहाँ पे। आप लोग जितना हल्के में ले रहे हो उतना हल्के में लेने का ये सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है ना। मार्केट में वो 5,000 10,000 के कोर्स खरीद लीजिएगा, उसका वो आपको और कंगला बना देगा, उससे कुछ नहीं होगा। बटन कहीं और है, लोग कहीं और हाथ मार रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए एकदम सिलसिलेवार तरीके से जो बता रहा हूं करिए। इनर सर्कल का मतलब है कि हम वहां पर, तो आज मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए ये सर्कल है इनर सर्कल में कि आज मंगल मिलन में हम लोग नहीं होंगे, हम लोग होंगे, मतलब अब आपका रोल होगा। आपने जो पढ़ा है वो पढ़ाएंगे। 1 घंटा का क्लास होगा इनर सर्कल, अब से 9:20 से चालू होकर के 10:20 तक चलेगा। 8:40 से चालू होकर 40 मिनट का हम लोग कुछ भी जो भी होगा रिकॉर्डेड प्रोग्राम वो देंगे, और 9:20 से 10:20 तक 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसमें 2 लोग या 1 लोग सामने आएंगे और अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसके ऊपर में लोगों को ट्रीट करेंगे, लोगों को बताएंगे। You will be on the hot seat and training. ठीक है ना, आप अपने हॉट सीट पे होगे और आप डील करोगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? कौन कौन इस इनर सर्कल प्रोग्राम को अपने से डील करना चाहता है? Type me in the chat section. ठीक है, ये एक काम होगा, आप लोग का जिम्मा होगा। इनर सर्कल में आप लोग क्लास करेंगे, ठीक है ना। मैं यहां से कनेक्ट कर दूंगा सबको, उसके बाद क्योंकि आप लोगों के पास जूम नहीं है, जूम जो भी फ्री वाला होगा वो 30-40 मिनट ही काम करेगा, तो मैं यहां से कनेक्ट करूंगा आप लोगों को, और आप लोग अपने टॉपिक के ऊपर में लोगों को मदद करेंगे, लोगों को नर्चर करेंगे। यानी अब आप अपने ट्राइब को बिल्ड करेंगे, तो आपके पास जो जानकारी होगी आप उस टॉपिक पे लोगों को मदद करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन एग्री करता है कि ये वो करने में मंगल के दिन आधा घंटा 15 मिनट आपको बात करना है, और वो बात Prepare yourself for that. Whatever topic you have, you will nurture your audience. 15-15 मिनट करके 4 लोगों को मौका मिलेगा या 6 लोगों को मौका मिलेगा। 1 घंटा या 1.5 घंटे का सेशन होगा, जहां पे 15-15 मिनट या आधा घंटा आप लोगों की मदद करेंगे उनको ग्रो करने में। कौन कौन इसमें अपना वोट देना चाहता है? किसको किसको इंटरेस्ट है कि वो 15 मिनट आकर के टॉपिक डिलीवर करेगा, और इंग्लिश में करे, हिंदी में करे, दो भाषा ही चलेगा, क्योंकि तीसरा कोई भाषा नहीं चलेगा। तो आइए सामने आइए, बताइए, नाम लिखवाइए अपना अपना। धीरज सर, श्रद्धा मैम, इशाहक, मुबारक, कृष्णा एंड मनीष। इस आप समझ रहे हैं ना कि एक जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको दुनिया देखेगी, आपको दुनिया देखेगी, क्योंकि मैं उसको सिर्फ यहाँ नहीं करूंगा, मैं उसको बाकायदा यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी लाइव कर दूंगा। मेरे पास सारा सॉफ्टवेयर है, एक जगह काम होगा वो ऑलरेडी हर जगह दिखाई देगा, ठीक है ना। तो मैं सबको एक जगह यहाँ पर बैठा के जूम पे पढ़ाऊंगा, लेकिन वो जूम का जितना सेटअप है वो सारा यूट्यूब पे भी दिखाई देगा और फेसबुक पे भी लाइव आएगा। आपके चैनल से भी वो शेयर हो जाएगा, हर एक आदमी के चैनल से शेयर हो जाएगा वो। बात समझ में आ रही है? तो टेक्नोलॉजी का पूरा ताकत दूंगा, जिससे कि आप अपने लेवल को और बूस्ट करोगे, अपने ऑडियंस का दायरा और बढ़ाओगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है फिरोज जी? क्लियर है बातें? टॉपिक क्या रहेगा सर? आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ाएंगे, आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ाएंगे। आपको अपनी अंदर की खूबसूरती निकालनी है। सब्जेक्ट कोई, मैंने 100 बार सिखाया है लोगों को कि आप क्या बोलते हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोलते हो ये फर्क पड़ता है। हेलो, क्या बोला मैं? आप क्या बोलते हो ये कतई मैटर नहीं करता है, आप बोलते हो इसीलिए फर्क पड़ेगा। क्या समझ में आया माधव सर? समझ में आया? आप बोलते हो इसीलिए फर्क पड़ेगा। लोग आपको सुनने आते हैं, आप क्या बोलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कितने अंदर से खूबसूरत हो ना, वो वहां दिखाई देना चाहिए। आपकी खूबसूरती का एक नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है। आप अमिताभ बच्चन, आप ऐश्वर्या राय हो, आप वो बोलते हैं ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जिसको लोग खोज रहे हैं देखने के लिए, उसको सुनना चाहते हैं। अभी आपके एरिया में अगर ऐश्वर्या राय या अमिताभ बच्चन आ जाए, या कोई भी एक फेमस हस्ती आ जाए, तो कैसा लगेगा आपको? नरेंद्र मोदी आ जाए तो आप वो क्या बोलेगा ये जान के जाओगे क्या उससे कि क्या बोलने वाला है? क्या पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। मनीष जी जवाब दीजिएगा
कि अभी नरेंद्र मोदी आएंगे तो आप इससे पूछिएगा क्या, या अमिताभ बच्चन आएंगे कि आप क्या बोलने आ रहे हैं, अगर आपका टॉपिक समझ में आएगा तब हम आपको सुनेंगे, कि आप पहले जाइएगा सुनने के लिए, वो कुछ भी बोल दे। उपाध्याय मैम क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ कनेक्ट बन रहा है? कि आपको अपना लेजेंडरी को समझना होगा और अकॉर्डिंग टू अपनी लेजेंडरी आपको प्रूफ करनी होगी, सामने आना होगा खुल के। लोग आपको खुद एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप शारदा है, आप शारदा हैं इसीलिए लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप मनीष है इसलिए लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। मैं नवीन हूं इसीलिए मुझे एक्सेप्ट करेंगे। वरदान को वरदान के लिए, मुबारक को मुबारक के लिए लोग आइडेंटिफाई करेंगे। माधव को माधव के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, फिरदौस को फिरदौस के लिए आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना? बात किसी किसी कनेक्शन बन रही है? बसंत, आपको बात समझ में आ रही है कि बसंत को बसंत के लिए लोग एडमिट करेंगे। बसंत जो भी बोलेंगे ना लोगों को एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप यू आर योर ओन ब्रांड। तो आप अपने अंदर से क्या निकालने वाले हैं ना वो अभी पता चलेगा, तब अपने तैयारी में आप लगोगी। साहब क्या बोल रहा हूं, बात कनेक्शन बन रही है? जेना बाबू समझ में आ रहा है? तो जेना बाबू को क्या बोलना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेना बाबू बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है। ठीक है ना? अपना वैल्यू समझिए। ओके? So everyone ready for this new challenge? कोई चैलेंज वालेंज नहीं है, करोगे तो ही सीखोगे, करोगे तो ही सीखोगे। कोई चैलेंज वालेंज नहीं। काय का चैलेंज भैया, करने का मोल है। यही दुनिया है, यही जमाना, यही डिमांड, यही सप्लाई है। करने का कीमत है भैया। करोगे, गलत करोगे और क्या करोगे? कोई क्या आपको वहां ढेला फेंक के मारेगा स्क्रीन में? क्या अपना ही स्क्रीन तोड़ लेगा किसी को मारने का भी मन होगा तो? आपका क्या उखाड़ पखाड़ देगा? मेन बात पे आइए ना। अरे आपको स्क्रीन के अंदर है ना, कोई क्या नुकसान कर देगा आपका? कोई डर है क्या? खत्म हो गया बात। ओके? तो अब से मंगल मिलन इनर सर्कल नहीं होगा, मंगल मिलन इनर सर्कल होगा, लेकिन स्टूडेंट डील करेंगे आपस में। खूबसूरत है ये? सामने सारे लोग टाइप कर दे, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। और आप लोग को बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप और आपके बच्चे सब सामने होंगे और अपना जो, जैसे हम लोग दोनों बात करते हैं बाप बेटी, जैसे मेरा बेटा बात करता है, मैं बात करता हूँ, मेरी बेटी बात करती है, मैं बात करता हूँ, आप लोग भी वैसे पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत, इतना ज्यादा खुशी होगी। ठीक है? क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो यही चाहता हूँ, हर घर सूप वरदान, घर घर सूप वरदान। हर कोई एक दूसरे को इंस्पायर करे और अपने अंदर का जो क्रिएटिविटी का नेक्स्ट लेवल पे लोगों को शिफ्ट कराए। क्योंकि बातें जब तक आदान प्रदान नहीं होंगी ना, कुछ नहीं होगा। विचारों का आदान प्रदान और आपकी खूबसूरती का आदान प्रदान होना ही चाहिए। अभी यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? बाकी के जितने भी टेक्नोलॉजी की बातें हैं, चैटबॉट बनाना है, वेबसाइट बनाना है, व्हाटएवर जो भी करना है ना, वो एक बात है, वो आपकी ताकत नहीं बनेगी। आप ही लोगों से कनेक्ट होंगे, उसके बाद वो बाकी की चीजें आपकी ताकत बनेगी। People buy you first, then your product. क्या समझ में आया? सारे लोग टाइप करें, पीपल बाय यू फर्स्ट देन योर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? टाइप करें सारे लोग कैपिटल लेटर में। स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपना, और कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहानाबाजी मत कीजिए। आपका समय बीत गया मतलब लौटेगा नहीं। आप कौन सा बात बोल रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपके पास इधर उधर की बातें हैं तो अपने आप को मिनिमलिज्म की तरफ लेके जाइए, अपने आप को मिनिमलिज्म की तरफ लेके जाइए। मिनिमम फूड, मिनिमम रिलेशन, मिनिमम कपड़ा, हर चीज मिनिमम की तरफ लेके जाइए। नहीं तो मैं जितनी बड़ी बड़ी बातें बोला हूं ना कि घर का लोटा बर्तन बिक जाएगा, चम्मच बिक जाएगा, ये सच्चाई है। आपको मैं बता दे रहा हूं, जो परिवर्तन है वहां पर एक दूसरे का सर नोचिएगा। आज क्या है, पाकिस्तान में 250 रुपए किलो आटा, सोच के भी गुदगुदी लगता है। पाकिस्तान में 250 रुपए किलो आटा सोच के गुदगुदी लगता है। ना तो इलेक्ट्रिसिटी, ना तो पानी, हर चीज का हालत खराब है। सोच के गुदगुदी लगता है। बताइए तो आदमी कैसे रहेगा? इतना टेक्नोलॉजी का जमाना, इतना आदमी अच्छा दिन देखा है, अचानक से उसको आदिकाल में पहुंचा दिया लोग। सोच के गुदगुदी लगता है कि बाप रे बाप कैसे लोगों का दिन कट रहा होगा।
हाँ, शॉपिंग मॉल वगैरह, मार्केट वगैरह 7 बजे बंद हो रही है। न्यूज तो देखते हो कि आप लोग, सोच के कितना डर लगता है कि 7 बजे शॉपिंग मॉल बंद हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कम है। कितना बड़ा बात है। तो हमारे पास जो है उसको समझना होगा, वो हमारी ताकत है। ऐसा ना करे कि ऐसे ही लूटामारी मच जाए, सब कुछ हो और कुछ भी ना हो। बातें कनेक्टेड है ना आप सभी को। सामने आके कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। माधव सर बोलिए, क्या बोलेंगे? बसंत सर क्या बोलेंगे? बोलिए। मनीष जी बोलना पड़ेगा, 2-3 2 मिनट कम से कम बोलिए। नमस्कार सर। बसंत जी नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप, क्या क्या करते हैं, बताइए अपने बारे में। धनबाद से हूँ सर। अभी सुनाई दे रहा है सर आपको? Yes, हाँ yes. हाँ हाँ। हाँ, चलिए। मैं कोचिंग चलाता था सर रानीगंज और धनबाद में। कोविड के समय सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई। अभी बस उसी तरह सब चीज हम देख रहे हैं, कुछ नए चीजों को। तो एड आपका देखा, फिर आपसे रूबरू हुआ। तो आप जिस तरह से बात किए सर, आज तक हमसे उस तरह से कोई बात नहीं किया था। मतलब यार गजब बंदा है, इस तरह कैसे बोल सकता है। चलो देख लिया जाए क्या है। तो ये मेरे लिए भी नया चीज है, क्या है नहीं है वो तो दिनों दिन पता चल ही जाएगा। राइट, थैंक यू सर। माधव सर बोलिए। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। बोलिए। सर बहुत कुछ करने का बाद इरादा तो हो गया अभी। पहले वरदान को वरदान को बोलते हैं, जो बोले लिविंग फूड खाने के लिए। ये तो मैं 2 दिन से चावल छोड़ दिया, रोटी छोड़ दिए। अपने आप को इस काबिल बनाए कि हम सही में सोचे कि ये सब हम लोग हाथ कतरा लेके बैठे हुए थे। और उतना आपका, आप जैसे बताए, खाने का प्रोसेस 32 बार चबा के, छोटा छोटा निवाला लेकर के, ये तो हम चालू कर दिए। और बचपन में करते थे सूर्य नमस्कार। हालांकि हम एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कुछ काम किए हुए हैं, तो ये सब तो जानकारी था। लेकिन क्या हुआ, जब हम अपना कार्यक्षेत्र में आ गए तो सारा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया मेरा लाइफ से। और यकीन मानिए, हम 50 में जैसे लग रहा था कि हम रिटायरमेंट ले लें इस उम्र में ही। लेकिन तभी आपका 2-4 बात और हौसला जगाया हमको कि हमको भी ईगल की तरह होना है। पुराना चोंच तोड़ के नया चोंच और नाखून निकालना होगा, दिखाना होगा कि हम मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो आने वाले समय सही में हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हम अपना प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, जेके टायर में। हम खुद देख रहे थे जिस पोजीशन में हमारा जैसा 5-6 बंदा काम करता था, अभी एआई का जमाना में 2 बंदा से उसका डबलिंग काम करवा रहा है। आप देखे होंगे, मतलब हम सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ऑफिस में ही रहते हैं, खाली टाइम स्पेंड होता है। और हमको सही में ये अंदर से फील हुआ कि नहीं, ये मेरा जिंदगी नहीं है। परिवार छोड़ करके अकेला कर रहा है, कितना कमा रहा है वो तो भगवान ही जाने, मेरा सैलरी से देखने से पता चल जाएगा। लेकिन अभी सर हम ठान लिए हैं कि और ये करना ही जरूरी, मेरा परिवार के लिए, अपने लिए भी, कि जाने से पहले यहाँ से, जब मेरा इनिंग्स खत्म होगा उससे पहले मेरा इस इनिंग्स को कोई यादगार रखे, और रखेंगे ही। थैंक यू सर। फिरदौस भाई क्या बोल सकते हैं, बोलिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। सर नहीं, इतना तो समझ में आ गया सर कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है सर, आपने पहले भी कई बार बताया ये कि हमारी लड़ाई अब हमारे जैसे लोगों से नहीं है, ये मशीन से अब हमारी लड़ाई होगी, हमारी जंग मशीन से ही होगी।
तो हम इस लायक होंगे तभी कुछ कर पाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। इतना समझ में आ गया आपको। ये रियली बात सर, अभी मैंने कुछ दिन पहले चार्ट जीपीटी के बारे में सर मुझे पता चला है, तो इससे मैं तो शॉक्ड रह गया कि सर आगे का हर काम, यहाँ तक कि फ्रीलांसर भी नहीं बचेंगे सर। यानी वो चार्ट जीपीटी सब कुछ करके ला के दे देगा। तो इसको सर रोबोटिक्स के साथ में अगर वो जोड़ देंगे तो रोबोट सारा काम कर देगा, तो हम तो बेकार सर, खत्म ही हो गए हम फिर। इतना सर समझ में आ गया सर बेसिक्स। बस सर ज्यादा नहीं सर, 1-2 दिन की मोहलत है सर। हम सर आज से ही साबित करेंगे अपने आप को सर, खड़े होकर हम दिखाएंगे सर। इतना सर आ गया समझ में सर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, आप आए हमारी जिंदगी में, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए हमको। बस सर आपको मतलब ये साथ इस तरह जितना बना रहे सोशल सर। मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया इतना जी सर। एआई ड्रिवन हो गया है, इतना जी एआई सर। ड्रिवन हो गया अभी। मतलब मेरे मुंह में मतलब पेट में बात है, घुसा हुआ मुंह से नहीं निकल रहा है। जी सर। गूगल चैट जीपीटी के आने के बाद से पूरा पागल हो गया है। जी सर। 12,000 जी लोगों सर। को निकालने के बाद उसने रेट चीट लगा के छोड़ दिया है। और जी सर। इमीडिएट वो खुद एआई का एक नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करने वाला है गूगल। जी सर। जी जी सर। मतलब आपको मैं क्या बताऊंगा, टोटल बिजनेस, टोटल मतलब ये गूगल मत गूगल को समझिए, और बाकी की जो सोशल मीडिया पैनल है, फेसबुक को फेसबुक मत समझिए, अमेजोन को अमेजोन मत समझिए। ये जी लोग सर। बहुत अलग तरीके से चीजों को समझ गए। मतलब ये लोग मतलब आज के भगवान हैं अगर सही मायने से समझा जाए। इनको सब जी समझ सर। में आता है, इनको बिल्कुल सर। हर बिल्कुल आदमी का एक एक हरकत समझ में आता है। और बिल्कुल सर। जिस लेवल पे काम हो रहा है ना, जी सर। मतलब मतलब आप हम मतलब गुलाम, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि जैसे अंग्रेजों ने गुलाम कर लिया था, बिल्कुल ये सर। तीनों बिल्कुल चारों लोग पूरा गुलाम कर देंगे वर्ल्ड को। जो जी सर। स्मार्ट नहीं होगा ना, जो अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करेगा, वो जी सर। इनके साथ सटने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जैसे मैं जी अपना ब्रांड खड़ा कर रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट को नर्चर कर रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के डांट डांट के करवा रहा हूं, मैं जरूर 1,000-10,000 लोगों को ब्रांड बना दूंगा। और ये असली कंपटीशन हो जाएंगे इन लोग के लिए। इन्हीं लोग के मदद करेंगे, लेकिन इनसे कभी कोलैब नहीं करेंगे। क्योंकि कोलैब करने का मतलब ही है, जैसे कि आपने पता होगा अभी रिलायंस जो बिग बाजार बिक्री हुआ, बिग बाजार को अमेजॉन ने खरीद लिया था। किसको किसको ये स्टोरी पता है? बिग बाजार को अमेजॉन ने खरीद लिया था, लेकिन अपने अंबानी साहब थोड़े स्मार्ट निकले और उसके ऊपर में रातों रात कब्जा किया, पूरा बोर्ड उतरवा लिया। आइए सबका कैमरा, रिलायंस स्मार्ट किसको किसको स्टोरी पता है? टुक ओवर, यस। बिग बाजार का झमेला को अंबानी ने कैसे अपने हाथ में लिया, किसको किसको बात पता है? अगर मार्केट के रिटेल में अमेजॉन घुस जाता, हालत खराब हो जाता सबका, सबका मुंह से पसीना मतलब पपड़ी निकल जाता। ये तो अंबानी को थोड़ा अकल था, ऊपर से मिनिस्ट्री का भी एक लेवल था। मोदी जी के साथ जरूर साठगांठ हुआ होगा और सेटिंग करके इन्होंने बोला कि इंडिया का कानून इंडिया की तरफ से चलेगा, अमेजॉन वाले को क्या पता है, ठीक है ना। रातों रात सबका बोर्ड उतरवा दिया। एक रात में पूरा बिल्डिंग, पूरा स्टाफ, सबको एक करके सबको गोल गोल घुमा करके अमेजॉन का पैसा भी हवा हो गया जो उसने खरीदा था। और पूरा प्रॉपर्टी पे, पूरा सामान पे, पूरा हर चीज पे रिलायंस का, अंबानी का ग्रिप बना। नहीं तो इतना बड़ा साम्राज्य जो है ना बिग बाजार का, अमेजॉन को बेच दिया था फ्यूचर वाला, ठीक है ना। क्योंकि लोगों को पैसे से मतलब है। आपको नहीं पता है अंदर में बड़ा गेम कैसे सेट हो रहा है। माथा का सारा बाल निकल जाएगा जो अभी का अवस्था है। नहीं समझिएगा तो कोई नहीं समझाएगा। बहुत दूरदर्शिता चाहिए, बहुत डीप सेंस चाहिए, बहुत तार्किक दिमाग चाहिए, तब ये सब बातें पकड़ में आएंगी। ये तो बहुत बड़ा गेमिफिकेशन है। ठीक है सर, शारदा मैम बोलिए, आप क्या बोलेंगे? यस श्रद्धा मैम। शारदा मैम। Yeah, Shraddha it is. Namaste, sir. श्रद्धा या शारदा? श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा। श्रद्धा है। ठीक। ठीक। बहुत अच्छा लगता है ये सब नई चीजें जान के। ओपन होता है ब्रेन, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन सर मैं एक और चीज साथ में कहूंगी, एक हल्का सा डर सा बैठता है जो कि नहीं बैठना चाहिए। अब मैं नहीं जानती ये पॉजिटिवली वर्क करेगा या, बट कहीं ना कहीं हिल से जाते हैं। तो इसका वो क्या होना चाहिए, यानी कोई भी चीज ऐसी आती है और फिर पता चलता है वी आर नोवेयर।
तो यू नो आप समझ पा रहे होंगे कि एक हल्का सा डर सा बैठ जाता है। एक होता है कि फाइन मोटिवेटेड होना कि यस ओके विल डू, ठीक है, लाओ इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाता है, करते हैं, और अगर इस तरीके तो दैट इज देयर। मैंने और फिर यूँ लगता है इसमें सक्सेसफुल मतलब कि इसमें कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं अपना कहती हूँ कि मेरा लाइफ कोच का फील्ड है अभी एट प्रेजेंट में, ठीक है, अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ, ठीक है, तो उसमें कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हाउ कैसे वो चीजें क्रिएट होंगी और हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे, क्या हम एटलीस्ट इतना कर पाएंगे। एक बात समझ जाइए, हाँ। जब अपना नाम पे और अपने चेहरे पे बात होती है ना, तो कंपटीशन है ही नहीं हमारे साथ। कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। कंपटीशन ये वर्ड जो है ना, ये पुराने जमाने के लोग बोला करते थे, आज के जमाने के लोगों के पास कंपटीशन नाम का वर्ड नहीं है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो कंपटीशन जैसा वर्ड है ही नहीं किसी भी सेक्टर में। Even if there are 1 million people in the same micro niche that you are in, तब भी your vibe will attract your tribe and you will have your own market. अभी जैसे कि आप एक एग्जांपल हम ही लोग को ले लीजिए कि आप मुझे बताइए पूरे वर्ल्ड में मेरे ऐसा कौन है। एक लाइन में आंसर निकलेगा। एक लाइन में आंसर निकलेगा। हाँ, मैं इंडिया का तो गारंटी कह सकती हूँ कि इंडिया में तो नहीं है। बात यहाँ है कि आप वर्ल्ड क्लास चीज है, ठीक है, वो मैं बिलीव करती हूँ। मेरी खुद की भी थॉट प्रोसेस वर्ल्ड क्लास जाती है, और वर्ल्ड क्लास को वो उस चीज में लाना कि यस वी आर दी बेस्ट, नो वन कैन कंपेयर। ऐसे इसको काउंट कर लीजिए, सब भारत के बराबरी में अगर कोई खड़ा है तो है चाइना बगल में। चाइना के अंदर में जो सबसे मतलब जो काबिल लोग हैं उसमें जैकमा का नाम आता है, ठीक है ना। करेक्ट, हाँ। जैकमा का स्थिति जाके देख लीजिए। तो ऐसे करके आप जब जज करेंगे क्षेत्र, देखिए सबसे बड़ा ताकत क्या है? सबसे बड़ा ताकत पैसा नहीं है, सबसे बड़ा ताकत है आपका जन का ताकत, आपके पास कितने लोग हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला ताकत होता है जन का ताकत, जो हमारे पास है, इंडिया के अंदर है। और हमारे पास जन का ताकत है वो यूथ का ताकत है। मतलब यूथ का मतलब 14-15 साल से लेकर के 35 साल के लोग बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। चाइना का वो हाल नहीं है, चाइना का वो हाल नहीं है। चाइना यूथ का देश नहीं है, ठीक है ना। बाकी कंपटीशन में कोई हम लोग के साथ है ही नहीं, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी का बड़ा बड़ा मुंडी है वो भारत के खून का है। अगर हम अपने आप को वापस कर लें, भारतीय लोग बोले कि नहीं हम किसी को सर्व नहीं करेंगे, किसी बड़ी कंपनी को सर्व नहीं करेंगे, हम चले, हमको काम नहीं करना है, हम काम करेंगे ही नहीं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां तुरंत कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक ताकत है जिसका नाम हमने आपको बताया है, उसका नाम है बाल का खाल निकालना, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा मतलब खंबा है, बहुत बड़ा सपोर्टिंग है, कि हमारे पास ही वो ज्ञान है जिसको बोलते हैं बाल का खाल निकालना। जितने भी बड़े बड़े कंपनियों में सबसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो सिर्फ भारत के लोग ही हैं। चाहे वो नासा में बात कर लो, चाहे वो किसी पैसे बनाने वाली कंपनी की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, जिसका भी नाम ले लो, सब में भारत के लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो भारत का जो खून में बात है ना वो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपने इस बात को नहीं समझा कि हम भारत की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लोग हैं, और हमारे मैकेनिज्म ऐसा है ना कि हम एंटीडोट हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए एंटीडोट है। और ये हमने कोरोना वायरस में फिर से प्रूफ कर दिया कि हमने ही एंटीडोट बना के मार्केट को दिया। तो आपको अपने बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमारी ताकत से अमेजॉन बन रहा है, गूगल बन रहा है, ठीक है ना। तो मेन चीज पे काम करेंगे तो होगा। कंपटीशन जैसा कुछ नहीं बचा इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कंपटीशन जैसा कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। सिर्फ आपका वाइब, आपका अट्रैक्ट। तो मैं जितनी तरह से आप लोगों को नर्चर कर रहा हूं, जिस एंगल से आप लोगों को तैयार कर रहा हूं ना, आपके सामने कोई खड़ा हो ही नहीं पाएगा। मेन बात पे आइए कि नवीन ने जो फार्मूला बनाया, सबको एक साथ लाओ सामने। नवीन ने जो फार्मूला बनाया है, शुभ वरदान का जो फार्मूला है, SIMT इंडिया 100x हैबिट लॉ है, ये जो लॉ है ना वो आपको इतने एंगल से नर्चर करता है कि आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा। एकदम क्लियर कट मुंह के सामने बोल रहा हूं, पूरे दावा ताल पे ताल ठोक के बोल रहा हूं कि मैंने जो सिस्टम बनाया है आप लोग को नर्चर करने का, आप लोग सभी लोग योद्धा हैं, बाहुबली योद्धा। मतलब वो योद्धा जिसके हाथ में तलवार है तो वो 1.25 लाख मुंडी काट के ही शांत पड़ेगा।
आपका गर्दन कट भी जाएगा तो भी आपका जिम्मेदारी आपके हाथ से नहीं छूटेगा, और आप सब तक 1.25 लाख नहीं मारेंगे तब तक आप हिलेंगे ही नहीं, चाहे आपका गर्दन पहले ही क्यों ना उतर गया हो। तो अपना बनावट ही ऐसा है। माधव सर क्या महसूस करते हैं आप? मनीष भाई क्या महसूस करते हैं? मैं जो बोल रहा हूं इसको आप काट सकते हैं कि मैं इस तरह की जो बातें बोल रहा हूं सामने आइए ऑडियो। माधव सर बोलिए। अभी तक मैंने जो सिखाया है, जो भी लोग जितना भी क्लास किए, क्या मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई दो राय है आप लोग का? जी नहीं, बिल्कुल सही है। आपको अलग अलग तरीके से संस्कार डाल रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं, दर्शन डाल रहा हूं, है ना? राइट सर, यस सर। एक एक एंगल से आप लोग को पूरा आईपीएस बना रहा हूं, एक एक एंगल से आप लोग को मैं डॉक्टर का सर्जन बना रहा हूं। आपके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। बड़ा से बड़ा फिलोसफर जो है ना, वो एक समय के लिए बौना हो जाएगा आपके सामने। क्या मन है, क्या बुद्धि है, क्या विचार है, क्या चेतना है, क्या चित है, क्या एक एक चीज पे आपका ध्यान ले जा रहा हूं। ऐसा ऐसा ध्यान ले जा रहा हूं जो अभी तक के इतिहास में किसी ने एक साथ बोला ही नहीं था। मतलब आप लोग को पुनर्जन्म दे रहा हूं, आपको बस नेक्स्ट लेवल पे खाली शिफ्ट करना है। यमुना मैम, यमुना मैम मैं आपसे पहले मिला नहीं, आज आपका पहला सेशन है क्या? कहाँ से हो आप? नमस्कार, नमस्कार सर। कहाँ से हो यमुना मैम? बुलढाणा जिला, महाराष्ट्र से सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2-4 वेबिनार सुने हैं, करना भी है, लेकिन थोड़ा सा हमारा मार्च एंडिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। 31 मार्च तक सॉल्व हो जाएगा, फिर करेंगे आप। ठीक 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 है, बने रहिए। आप लोग के पास आपका एलएमएस है, तुरंत जाके अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए। जिनके पास एलएमएस नहीं है, अपने आप को एलएमएस पे लाने के लिए जो संभव प्रयास आप अपना पुरुषार्थ दिखा सकते हैं, तुरंत दिखाइए। आपके पास दूसरा काम नहीं है। जो आपकी लर्निंग प्रोसेस है, जो मैं दिया हूं आपके लिए, वो बहुत ज्यादा एग्जामिन्ड है, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, नॉट ओनली इंडियन फिलॉसफी मैथोलॉजी, बल्कि पूरे वर्ल्ड की फिलॉसफी और मैथोलॉजी पे दिमाग लगाने के बाद एक एक चीज को ना इस तरह से खंगाल के, इस तरह से साफ सुथरा करके आपके सामने लाया हूं ना, वो नेक्स्ट लेवल है एकदम। आप लोग बहुत सेफ हैंड में और बहुत सही जगह पहुंच गए हैं। ये सिर्फ ऊपर वाले की दया है जो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, और क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट है। हमारे भारत के लोगों में जो बहुत बड़ा आबादी है ना, उसको ये चाहिए जो मैं दे रहा हूं, ठीक है ना? आप लोग को बस पहलवान हो जाना है। और मैं चाहता हूं कि मैं पार्टनर प्रोग्राम आपको दूं। जो लोग एलएमएस पे हैं वो हमारे पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में आगे बढ़ना है, पैसे भी चाहिए, तो तुरंत ही पार्टनर प्रोग्राम में एक्टिव हो। और मैं चाहता हूं मार्च में 31 तारीख तक कम से कम 100 स्टूडेंट आपके अपने हो, जिसको आपने खड़ा किया हो। अलग बात है कि वो सुवरदान की पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके स्टूडेंट हो, ठीक है ना, जिसको आपने पेमेंट लेकर के सामने खड़ा किया हो। तो जो एलएमएस पे हैं वो ये काम कर सकते हैं, मुझे पता है, और मैं सिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना? तो एलएमएस के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग तुरंत ही अपना पार्टनर प्रोग्राम वापस से चेक करें, और वहां से जो भी डाउट निकलता है मुझसे पूछें, मैं आपकी मदद करूंगा। और कैसे बिजनेस होता है मैं बताऊंगा। जो लोग एलएमएस पे नहीं है, तुरंत एलएमएस पे पहुंचे, अपना फीस जमा करवाएं, ठीक है ना, और करें। मैं चाहता हूं हर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के पास कम से कम 100 लोग तो वैसे जरूर हो जो एलएमएस पे वो आ जाए उनकी मदद से, या फिर शुभ वरदान से किसी भी तरह से कम अटैच हो जाएं। ये करिएगा तभी सीखिएगा आगे कैसे बढ़ा जाता है। क्योंकि अभी आपके पास जो भी है ना, वो उस लेवल पे नहीं है, आप कहीं ना कहीं औना पौना है ही। तो बहुत जरूरी है कि अंडर गाइडेंस काम करें, अपना इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरुआत करें। क्योंकि आप हमेशा सीनियर ही रहेंगे, तो आप रैगिंग कर ही पाएंगे किसी का भी, इसलिए टेंशन ना लें, आप लोग एक्टिव हो, ठीक है? सारे लोग समझ पा रहे हैं? जिनको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एलएमएस का मतलब पेड प्रोग्राम हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और स्पेशली अभी जो क्लास हो रहा था लीड जनरेशन, वो सब भी एलएमएस पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो जो लोग भी एलएमएस का पार्ट हैं, जिन्होंने भी वर्कशॉप के लिए पे किया या कोर्सेज के लिए पे किया, उनको वो रिकॉर्डिंग्स मिल चुके हैं, ठीक है? एंड द न्यूएस्ट थिंग टुडे वाज कि आप सबको नेक्स्ट ट्यूसडे से नेक्स्ट मंगल मिलन के लिए अपना अपना कंटेंट रेडी करके, कॉन्टेक्स्ट रेडी करके लाना होगा। प्रिपेयर योरसेल्फ। नहीं, वो मुझे आप प्रेजेंट करेंगे ना, एक बार आप उस वीडियो को अपने से एक करें और अपने यूट्यूब पे डालें, अपने चैनल बनाएं,
चैनल का नाम आपके नाम पे होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाए जिसका नाम आपका नाम ही होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल नाम ही आपका चैनल का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके आगे पीछे कुछ आप क्लू लगा दें, ठीक है ना। जैसे मैं बसंत भाई से बात कर रहा था, तो वो एक इंग्लिश के फैकल्टी हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को, सो तो मैंने इंग्लिश विद बसंत या फिर तो समथिंग इंग्लिश लाइक विद दैट। बसंत, है ना। जैसे कि अपना चैनल बनाए तो, है ना, कि बसंत की इंग्लिश, है ना, या फिर बसंत की क्लासेस, है ना, बसंत की इंग्लिश, ऐसे मतलब इंग्लिश, जैसे कि उनका एक टॉपिक है कि इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, तो भाई बसंत है तो फिर अपना नाम सामने लाना है, मतलब कहने का मतलब है कि आपका नाम, जैसे अभी कृष्णा जेना है ना, तो कृष्णा जेना है तो कृष्णा जेना जिस तरह का नॉलेज रखते हैं सेल्स के बारे में, है ना, तो आप लिख सकते हैं कि सेल्स विद कृष्णा, सेल्स विद कृष्णा या कृष्णा सेल्स, है ना। तो वैसे कि लोग तुरंत कनेक्ट कर जाएगी, सेल्स पर्सन है बंदा, सेल्स का आइडिया रखता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपका एक टॉपिक पे आप बात करेंगे, तो जैसे आप एलएमएस पे आएंगे ना, आपको आपका टॉपिक क्लियर होगा। लाइक डिजिटल श्रद्धा और टेक्निकल दिस दैट लाइक दिस, जैसे मतलब कुछ कीवर्ड रखा आपने। जैसे आपने बोला कि आपका लाइफ कोच से ये है, तो लाइफ कोच एक बहुत बड़ा डिमांड हो गया, हमको उतना बड़ा बात में नहीं जाना, हमको छोटा सा बात में जाना है, छोटा सा लाइक ओनली फॉर विमेन, या जैसे फिर कि only for- आप एक सिंगल मदर हैं, ठीक है ना, तो आप, ये बात आपके लिए बहुत खूबसूरत बात है कि आप सिंगल मदर हैं, तो सिंगल मदर बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो श्रद्धा एज ए मदर, तो ये एक अपने आप में एक माइक्रो नीज देता है आपको, एक नया पहचान देता है कि श्रद्धा एज ए मदर, मतलब आपके लाइफ के और भी पॉइंट्स ऑफ व्यू है, लेकिन आप एज अ मदर वाला पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगी, तो ये माइक्रो हो गया। तो आपकी स्टोरी अपने आप निकल के आती है सामने, ये लाइन ही अपने आप के आपकी स्टोरी बताता है। बात समझ में आ रही है कि आपकी स्टोरी ही आपका लाइन से स्टोरी बनती है ना। आपका नाम ही स्टोरी का एक एंगल दिखा देता है कि एक माँ बात करने वाली है ना। तो माँ बात करने वाली है, तो माँ कौन कौन से एंगल से बात करेगी, माँ प्रेगनेंसी पे भी बात कर सकती है, माँ एक वो लड़की के रूप में भी बात कर सकती है जिसको टीन एज बोलते हैं, माँ बच्चों के लिए भी बात कर सकती है, माँ स्टडी की भी बात कर सकती है, माँ आर्ट क्राफ्ट कुकिंग की भी बात कर सकती है ना। तो श्रद्धा एज ए मदर बोलने का मतलब है कि वो सारी बातें ग्रिप में आती हैं, है कि नहीं। तो आपके लिए एक ब्रॉड सेंस निकल जाएगा, मतलब ब्रांड देन ब्रांड का इकोसिस्टम, पहले ब्रांड श्रद्धा एज ए मदर, फिर अलग अलग विंग्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, बच्चा कैसे पोषित होगा, लड़कियों को जो समस्याएं हैं उसका क्या दिक्कत है, लेडीज को आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज क्या प्रॉब्लम है ना, आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी, है ना, प्री, तो बहुत सारी जो बातें हैं वो एक माँ कर सकती है, ठीक है ना। तो वहां से बात, तो लाइफ कोच बहुत बड़ा बात हो गया, लेकिन किसका लाइफ कोच, तो एक माँ एज ए लाइफ कोच, तब ज्यादा समझ में आता है ना। कुछ बलवान हुआ, मैं क्या बोला, टाइप करे बलवान, किसको किसको बलवान हो गया। जैसे मुबारक, मैंने आपको आज बताया कि आपका टॉपिक है बच्चा का जो पढ़ने का कैपेसिटी वो पुअर है, तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि आप उनकी माँ को ये करो, अगर माँ कनेक्ट हो जाएगी तो बच्चा खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टिज से कैसे करे इनकार, है ना। माँ बना के मैगी खिलाती है बच्चों को, सबको पता है मैगी एकदम बकवास चीज है, लेकिन जब माँ बना के खिलाती है, टीवी में ये ऐड दिखा रहा है, तो क्या कनेक्शन बना कि ये हेल्दी है, ठीक है ना। तो जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टिज से कैसे करे इनकार, तो ये कनेक्शन बनता है। डेयरी मिल्क का ऐड आया कि कुछ मीठा हो जाए, उससे ज्यादा आया कि शादी में दिखा रहा है कि प्लेट में सजा के जैसे काजू कतरी सर्व होता है वैसे डेयरी मिल्क सर्व हो रहा है। क्या समझ में आया। तो आप दिखा क्या रहे हैं ना, ये बहुत मैटर करेगा। तो स्टोरी सेल, फैक्ट एंड फैक्चुअल्स ऑलवेज टेल्स बट नॉट सेल, सारे लोग टाइप कर दें, फैक्ट टेल्स बट स्टोरी सेल्स, फैक्ट टेल्स बट स्टोरी सेल्स, तो स्टोरी बिकती है, ठीक है ना। मीर साहब समझ में आ रहा है, कुछ बोलने के अधिकार में है तो आप बोलिए कुछ। yes you can unmute yourself.
Yes, fact tells, but story sells. इसाक भाई बोलिए, क्या बोलेंगे? बोलिए, क्या समझ में आया? Yes, unmute. हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। बेटा को भी बैठाया हूँ साथ में। नमस्कार। सर मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देने चाहूंगा आप दोनों को। जब से मैंने ये शुभ बर्धन में शामिल हुआ हूँ, फिर ये जो आप दोनों का जो पिता और बेटी दोनों बैठ के जो हर भारतीयों को शिक्षा देते हैं, इसमें मेरा बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ उस दिन। और ये जो आपका जो बिटिया है, उनकी उम्र में मैं तो पिताजी हूँ, तो मैं वही महसूस किया जो आपका बेटी इतना बोल सकती है तो कल मेरा बेटा भी क्यों नहीं बोल पाएंगे। और जब आपने जो ऑटो पिलोट में पहला शिक्षा दिया, उसी में मुझे मालूम हुआ था उस दिन, जो आप बात बोलते हैं वही हमको बोलना है। वो जब हम बोलने सीखेंगे तो आपका पीछे मैं जरूर आ सकता हूँ। तो उस दिन से जो मैं बोल पाऊंगा तो उस दिन हमको सारे भारत में जान पाएंगे मैं क्या सोचकर आज शुभ बर्धन में आया हूँ। तो मेरा मतलब वही है, सिर्फ मेरे एक ही कमजोर है सर, अपने पेट को चलाने के लिए तीन बार मेरा घर द्वार सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरा एक ही टारगेट है, जिस घर में मैं पैदा हूँ और जहाँ से मेरा शुरुआत है वहीं पे मेरा खत्म हो जाए। तो वही मेरा सपना है आज भी। पहला मेरा ये वेबिनार बहुत देखा हूँ, बहुत मतलब पैसा नहीं दिया हूँ, फिर देखा हूँ, तो जब उसमें और आप में जो डिफरेंस देखा हूँ, तो उस दिन से मैंने लाइक किया और मैं आपसे संपर्क हुआ। आपने बहुत मुझे बहुत कुछ समझाया। तो एजुकेशन के बारे में आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरा मेंटोर है। मैं उम्र से मैं बड़ा हूँ, हो सकता हूँ, लेकिन ज्ञान में मेरा कमजोर है, लेकिन सीखना कमजोर नहीं है, सीखना जरूरी है मेरे लिए। और ये शिक्षा मैं बेटा बेटी को दे सकूंगा और दोनों में जब परिवर्तन आएगा, लोग अपने आप चले आएंगे मेरे आपके शिक्षा के द्वारा। मेरा यही मानना है सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एलएमएस पे समय बिताइए बेटा, आप भी अपना समय एलएमएस पे बिताइए पापा के साथ। पापा का आईडी अपने ले लीजिए, ठीक है ना? आप लोग अपना रजिस्टर कर लीजिएगा, मेरे को कंफर्म कीजिएगा, तो आपके नाम पे भी आईडी अलॉट कर दूंगा। मुझे एक पैसे में मैं आपके स्पाउस और 2 बच्चों को सेम पैसे में बताता हूं, मुझे अलग अलग पैसे नहीं चाहिए, अलग अलग मुंडी के हिसाब से। अगर आप कोई पार्टनर हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, तो मैं आपके और आपके 2 पार्टनर को, आपको और आपके 2 पार्टनर को एक साथ लेता हूं। मैं अलग अलग पैसा लेने में विश्वास नहीं करता हूं। सिर्फ 369 वो आपको हर एक मुंडी पे अलग अलग देना है ना? क्योंकि 369 एक पर्सनल है, जैसे आप भोजन करेंगे तो आपका है, तो वैसा है। तो 369 का कुछ अलग ही एल्गोरिदम है, तो जितने लोग आप जुड़ते हैं उतने 369 देंगे आप। बाकी जो मेन फीस है, जो एलएमएस का फीस है, वो सिर्फ एक ही फीस देंगे। मैं आपको अलग अलग आईडी आपका अलग अलग ईमेल से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना? 4 लोगों को मैं कनेक्ट कर दूंगा उस सूरत में जब आप एक फैमिली, एक खून के रिश्ते में हैं। अगर पार्टनर है तो 1 और उसके साथ 2, मतलब 3 लोगों को मैं अटैच करूंगा एक ही पैसे में, अगर पार्टनर है तो, बिजनेस पार्टनर है, ठीक है ना? तो वैसे करके मैं आपको मौका देता हूं कि ज्यादा पैसे देने की दरकार नहीं है, अलग अलग आप सीखें, आगे बढ़ें, क्योंकि हम और आप कोलैब करने ही वाले हैं। इन फ्यूचर हमारा कोलैबोरेशन आपके साथ होगा ही। जब आप 300 करोड़ कमाओगे तो 1% से लेके 5% मैं मांगूंगा और आप हंस के दोगे भी। यानी मुझे आपसे 3 करोड़ से लेकर के 15 करोड़ रुपया मुझे हर साल मिलेगा ही, क्योंकि मैं हूं यहाँ पे। तो मुझे पता है कि अगर 300 करोड़ रुपया अगर आप कमाओगे तो मुझे 1 से 5% का मैं दावा ठोक भी पाऊंगा, और आप मुझे देने में पीछे भी नहीं रहोगे, क्योंकि हर आदमी को पैसा कमा के आगे निकलना है, ठीक है ना? तो अपना तो वो टारगेट है।
ठीक है ना। तो मैं जान रहा हूं आपकी पोटेंशियल क्या है, आपको ही नहीं पता है आपकी पोटेंशियल क्या है। तो आप लोग का पोटेंशियल जैसे आपको पता चलेगा, आप वर्क चालू करेंगे, तब फिर ये पैसा फिर आपको समझ में आएगा कि ये बहुत छोटे पैसे हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैसा आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। तो बड़ा बड़ा पैसा जो इंतजार कर रहा है, वहां पहुंचने के लिए ये छोटा बुद्धि से बाहर निकलना पड़ेगा। ये छोटा बुद्धि से बाहर निकलेंगे तो अपने आप उस बड़ा बुद्धि में बड़ा 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 सागर का वेल बनेंगे आप। तो कुछ नहीं है, अभी शुरुआत है, करिए, लेकिन जो बोलता हूं वो करिए, करिएगा तो जीत जाइएगा, ठीक है ना। नहीं तो जमाना बहुत बेरहम है। मनीष भाई, आपका रेस्पॉन्स बहुत गड़बड़ है, अब क्यों है वो आपको पर्सनल पता होगा, आपको सही करना है अपना रेस्पॉन्स। अपनी लर्निंग साझा कीजिए पर डे, एलएमएस पे समय बिताइए, दिन रात एक कीजिए, ठीक है ना। ये समय मेहनत करने का है, ठीक है ना। 2024 इलेक्शन से पहले आप लोग अपने आप को खड़ा कर लीजिए एज ए ब्रांड, मेरा यही उम्मीद है। अगर आप लोग अपने आप को 2024 से पहले खड़ा कर लेंगे ना, तो 2024 के बाद जो इलेक्शन के बाद चेंजेस है ना, आप लोग को अफेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। आपको अभी तो स्टार्ट हुआ है, दिखाई देगा। अभी तो एआई का अपना वर्चस्व फैल रहा है, अभी दिखाई देगा। अभी एक से एक पीछे से और भी लोग आ रहे हैं जो चैट जीपीटी से भी बड़ा बड़ा चीज लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक से एक कंपटीटर आ रहे हैं मार्केट में जो उस तरीके की चीजें लॉन्च करेंगे, और वो सब कुछ फ्री होगा। जब सब कुछ फ्री होगा ना, तब आप ऐसे भी पागल होने वाले हैं, आपके पास अकल ही नहीं होगा इस्तेमाल करने का। बोलते हैं ना कि हीरा का अंगूठी मिल जाएगा आपको, लेकिन हीरा का अंगूठी आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि फटा हुआ जूता होगा। तो हीरा का अंगूठी पहनने का मन ही नहीं करेगा कि कपड़ा ही फटा हुआ है, तो हम हीरा का अंगूठी कहाँ पहनेंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कपड़ा ही अच्छा नहीं पहनेंगे तो हीरा का अंगूठी कहाँ पहनेंगे आप। तो वो वाला हाथ है, क्योंकि हीरा का अंगूठी तो फ्री में मिल जाएगा, कपड़ा तो खुद खरीदना पड़ेगा। तो वहां पे गाड़ी फंस जाएगी। यहां पर मैं विराम देता हूं, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने एलएमएस की लर्निंग को वीडियो में कन्वर्ट करें, अपने वैल्यूज को सामने लाएं, ठीक है ना। एलएमएस ने बहुत सारी चीजें आपके लिए आपको बिल्ड करती हैं। अपना तुरंत ही एलएमएस पे जगह बना करके, नहीं भी है तो, और जिसका है वो तुरंत। मनीष भाई, कोई सवाल है तो पूछें आप कि मैं क्या मदद करूं। नमस्कार सर। बोलिए मनीष भाई, क्या मदद करूं मैं आपकी। सर एक्चुअली सर आपकी तरफ से एफर्ट पूरा है। कई बार आपने मुझे कॉल भी किया, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था सर कई दिनों से। बीच में एक दो मैंने संडे की क्लास भी मैं नहीं अटेंड कर पाया, और अभी जस्ट आज ही कनेक्ट हुआ हूँ कई दिनों के बाद। मतलब एक वीक मेरा ऐसे ही निकल गया सर, तो थोड़ी सी लर्निंग भी नहीं हो पाई थी अभी। अब सर जो है पूरी तरह से कनेक्ट करूंगा मैं। रात का भोजन एकदम हल्का कर दीजिए, गर्मी भी आ गया है। रात का भोजन Yes, एकदम नहीं के बराबर कीजिए। 7 बजे तक, 7:30 बजे तक बोलिए घर में कि मुझे कुछ हल्का खिला दिया कर। दूध के सहारे रात बिताइए, और रात में मन से पढ़ाई कीजिए, जम के एलएमएस पे पूरा एकदम समय दीजिए। आपको करना ही पड़ेगा। पानी का सेवन ज्यादा कीजिए, आपके शरीर को पानी चाहिए। आपका स्थिति मैं देख रहा हूँ, आपके बॉडी को सिर्फ पानी चाहिए, भोजन तो आपको चाहिए ही नहीं। जूस वूस पिया कीजिए। ये रोटी और भात को एकदम घटा के, एक छोटा कटोरी में भात, दाल एक बड़ा कटोरी में, रोटी एक से ज्यादा मत खाइए आप। आपके बॉडी को रोटी नहीं चाहिए, चावल भी नहीं चाहिए। दाल और साग वाग बनवाए कीजिए घर में, एक आध कटोरी दाल और एक ये खाया कीजिए। इतना छोटा सा चावल लिया कीजिए, ज्यादा नहीं, एकदम जिसको बोलते हैं ना 100 ग्राम चावल, मतलब बना हुआ चावल का वजन कर लीजिए, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीठा खाना बंद कीजिए आप, आपके बॉडी को ये सब नहीं चाहिए। ना तो मीठा वाला सामान चाहिए, चावल भी एकदम एकदम छोटा सा खाइए, तलब है खाने का इसीलिए खाइए। और रोटी एक खाइए, नाश्ता में भी एक रोटी खाइए और खाना में भी एक ही रोटी खाइए, आपको नहीं चाहिए इससे ज्यादा खाना। बाकी पानी वानी पी के काम बनाइए, है ना। एकदम खाने पे परहेज कीजिए, सलाद जम के खाइए, खीरा गाजर ककड़ी जितना लाना ले आइए घर में, जम के खाइए। पूरा आधा किलो खीरा खा जाइए। मैं तो डेली 1.5 किलो खीरा लाता हूँ, और 1.5 किलो खीरा में लगभग 700-800 ग्राम खीरा मैं ही खा जाता हूँ, ठीक है ना। तो खीरा मैं जम के खाता हूँ। और भी खीरा कौन सा लाता हूँ, वो जो देसी खीरा होता है, लाल लाल टाइप का खीरा, हरा खीरा नहीं खरीदता मैं। आप हरा खीरा खरीद के लाइए और लाल खीरा खरीद के लाइए। लाल खीरा में आपको बहुत मजा आएगा खाने में, हरा खीरा आपको खाने का मजा नहीं आएगा। तो लाल वाला खीरा, पुराना टाइप का जो खीरा दिखता है, वो वाला खीरा लाइए, वो खीरा लाइए। मैं तो डेली 1.5 किलो लाता हूँ,
1.5 किलो में आधा से ज्यादा मैं ही खाता हूँ, 1 किलो में ही खा जाता हूँ। यस सर। सर वैसे लाता मैं भी हूँ, बट ये ज्यादा खा जाता है बेटा मेरा। अभी छोटा ही है, 6 ईयर ही है। आप दुगना कर दीजिए उसको, 1.5 की जगह 3 किलो लाइए, ठीक है ना। यस सर। खाएगा, अच्छा चीज है, क्यों नहीं खाएगा। और उससे अच्छा है ना कि रोटी भात से बचेगा। रोटी भात खाना नहीं है, रोटी भात एक तरह से देखा जाए अगर सही से समझेंगे ना तो रोटी भात एक तरह से जहर है, क्योंकि आदत लग गया है, संस्कार पेट भरने का मिल गया है ना, इसीलिए रोटी भात खाते हैं। रोटी भात बेसिकली जहर है, सही से देखा जाए वो व्हाइट है, और जो भी व्हाइट खाने का सामान होता है ना वो जहर है। अब इसको शुगर इंक्लूडेड, तो जो भी व्हाइट खाते हैं चावल या गेहूं वो जहरी है, उसका रोल नहीं है बॉडी में। तो ये बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन क्या ना हम लोग का बॉडी बनी गया, अब जब 20 से हम लोग बनी गए तो फिर वो संस्कार में है, खाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सेशन मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, और आपकी वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी जो भी लर्निंग है ना 2 4 5 वीडियो बना के ठोक दीजिए और ग्रुप में डालिए। सभी लोग, सबका नाम पढ़ देते हैं एक बार, कौन कौन है यहाँ पे। अमरप्रीत सर, बसंत सर, दानिश सर, धीरज सर, दुर्गेश, सोनी सर, फिरदौस सर, इशाहक सर, कृष्णा सर, माधव सर, मनीष सर, मीर सर, मुबारक सर, साक्षी इज समवन न्यू, संध्या मैम, शिवाजी, ओके समवन न्यू। आप पूरे टाइम एक्टिव नहीं थे। श्रद्धा मैम, यमुना मैम, शिवाजी सर, यू ऑल्सो, ओके, आई थिंक यू आर न्यू, राइट। जो लोग नए हैं ना वो 369 मुझे पे कर सकते हैं, वो हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। 369 एक ऐसा अमाउंट है ना जो आप मेरे को आपको हमारे से लाइफ टाइम के लिए जोड़ देता है। हमारा ईमेल सिस्टम, हमारा ऑटोमेशन सब आपको रेस्पॉन्स करेगा। जैसे आप 369 पे करके हमारे कम्युनिटी में आ जाते हैं ना, हम जीवन भर तक आपको भूलते नहीं है। हमारा सिस्टम ही ऐसा हमने बनाया है ना कि हम आपकी मदद कर पाए। बहुत सारे लोग हैं जो किसी बात से नाराज होकर के हमारे कम्युनिटी से चले गए हैं, कम्युनिटी उनको लगता है वो चले गए हैं, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिए तो उनको लगता है कि वो हमें को छोड़ दिए। ऐसा नहीं है, वो हमें, मैं देखता हूं, जैसे आज ही थे पवित्रो नायक थे, पवित्रो नायक एक वहाँ जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, वो बहुत पुराने स्टूडेंट, मैं देख रहा था आज वो थे। और भी बहुत सारे लोगों को देखते रहता हूँ, जैसे कि वो एक गुंजाल साहब थे। गुंजाल साहब पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ वो LMS पे है, ठीक है ना, जबकि वो ऐसे हल्ला गुल्ला मचा के निकल गए, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा ऑटोमेशन ही इस तरह से काम करता है ना कि लोगों को पकड़ पकड़ के क्लास के अंदर घुसाता रहता है। तो एक बार कोई हमें 369 दे देता है तो हमारा ऑटोमेशन उनको, रोबोट्स उनके पीछे लगा रहता है, उनको मेल करते रहता है, उनको मैसेज करते रहता है, उनको बताते रहता है कि आज ये नया है, आज हमारे रसोई में ये पका है। तो ये सब है, तो ये सब आप लोग का भी अभी ताकत बनेगा, कैसे ऑटोमेशन में आपके अलग अलग बातें होंगी। तो ऑटोमेटिक में लोग, और फिर जो लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं वो भी करा लीजिएगा ना, यहाँ पे है सारा कुछ। 369 का मैंने लिंक दिया है, आप 369 पे करके मेंबरशिप ले सकती हैं, ठीक है। यमुना मैम, 369 इज योर जो आप संडे मास्टर क्लास के लिए पे करती है, और ये एक तरीके का हमारे कम्युनिटी का मेंबरशिप है। और आप लोग जिनको जिनको पार्टनर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है ना, वो हमसे ग्रुप में बात कर ले, मैं उनको पार्टनर प्रोग्राम का लिंक दूंगा और वो पार्टनर प्रोग्राम में हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन मैंडेट ये है ना कि आप LMS पे होने चाहिए, यानी आपका 18,999 रुपया कीमत आ जाना चाहिए, चाहे तो एज ए कंपनी, चाहे तो एज ए इंडिविजुअल, चाहे तो एज ए फैमिली। आपका 18,999 रुपया हमारे यहाँ पेड होना चाहिए, तब हम आपको अपना पार्टनर प्रोग्राम देते हैं, ठीक है ना। तो जितना जल्दी कर सकते कर लीजिए, और मैं आपको मौका देता हूँ इस मार्च के क्लोजिंग में कम से कम भी तो 1 लाख रुपया कमाने का मौका दे रहा हूं, कर लीजिए आप। ठीक है, शेयर योर लर्निंग्स एवरीवन। जिसको पेमेंट करना है, जो नए लोग हैं जिनको हमारी कम्युनिटी में आना है, वो 369 देके आ जाए तुरंत। LMS में आने के लिए 18,999 रुपये देना पड़ेगा। जिनका इंटरेस्ट है LMS में आने में, आना ही पड़ेगा, आज नहीं आइए 2 दिन बाद आइए, लेकिन जितना जल्दी आइएगा उतना जल्दी राजा बनिएगा। तो राजा बनना है तो 18,999 पेमेंट कीजिए, सिंपल है। shubhvardhan.com/18999 shubhvardhan.com/369, बस यही है। हमने हर चीज बहुत सिंपल बना दिया, लोगों को एकदम तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फटाफट अंदर आइए। और आज मैंने एक सर्वे फॉर्म दिया आप लोग को, साथ में LT का लिंक भी दिया है। तो LT का लिंक का मतलब होता है लिंक ट्री, जिसके अंदर में हमारे सोशल मीडिया भी है और हमारे लाइब्रेरी भी है, सब कुछ मैंने आपको अलॉट किया है। हमारा ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट भी मैंने आपको अलॉट किया है। वो LMS में लिंक ट्री में जितने बटन है सबका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। और पूरा गंगा में डुबकी लगाइए और पूरा एकदम ताकतवर हो जाइए, ठीक है। मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में।